નમસ્કાર. વેરી ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. દિવાળીના મંગલ પર્વની પૂર્ણતા સાથે વિક્રમ સંવત 2081ના નવા વર્ષની શરૂઆત આપ સર્વેને લાભદાયી નીવડે એવી શુભકામના સાથે અમે પણ ચેમ્બર તરફે એમએસએમઈ કમિટીનો નવા વર્ષનો આજનો આ પ્રોગ્રામ યોજીને શ્રી ગણેશ કર્યા છે. આજનો આ પ્રોગ્રામ ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત exclusive program on Walmart Vriddhi supporting startups and MSME in exploring e-commerce opportunities નો યોજેલ છે, જેમાં હું સીએ મનીષ બજરંગ, એમએસએમઈ કમિટી ચેરમેન, આપ સર્વની ઉપસ્થિતિને આવકારી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણી વચ્ચે આજના વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ તરફે યંગ અને ડાયનામિક સ્પીકર શ્રી હર્ષલ તાણાવાલા તેમજ તેમના અન્ય સાથી અહીં ઉપસ્થિત છે. તો આપ સર્વેનો અમે ચેમ્બર તરફે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ. A big round of applause for dignitaries and warm welcome to all. હવે પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરવા માટે હું ચેમ્બર ઉપપ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીને નિમંત્રિત કરું છું. થેન્ક યુ મનીષભાઈ, આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારે આ કાર્યક્રમની અંદર પહેલા તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ શું પ્રવૃત્તિ કરે છે તેની વાત તમને કરવી છે, પણ હવે વાતની શરૂઆત કરું તે પહેલા ચેમ્બરના મેમ્બર્સ આમાંથી કેટલા છે તે મારે જાણવું છે. એનો અર્થ એ તો કે હજુ માત્ર 20% ઓડિયન્સ ચેમ્બરનું સભ્ય છે અને 80% સભ્ય નથી. તો મારે ચોક્કસ જ ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિ વિશે તમને જાણકારી આપવી જરૂરી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ 5 મહત્વના ક્ષેત્રોમાં કામ કરે છે. પહેલું, જે મિત્રો મેમ્બર નથી તે લોકો ખાસ સાંભળજો અને તેના બેનિફિટ સમજજો. પહેલું, ગવર્નમેન્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન, એટલે કે સરકાર અમારું સાંભળે છે. કે ગુજરાત સરકાર હોય, કેન્દ્ર સરકાર હોય, સુરત મહાનગરપાલિકા, કલેક્ટર, પોલીસ કમિશનર, કોઈ પણ યુનિવર્સિટી, આ બધા જ જગ્યા પર ચેમ્બરનો કાર્ડ ચાલે છે. અને ચેમ્બર કોઈ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ધંધાના ઉદ્યોગના પ્રશ્નો જેને પણ હોય તે પોતે રજૂઆત કરી નથી શકતો. માનો કે દાખલા તરીકે આપણા ધીરજ ના માલિક મોદી સાહેબ બેઠા છે. હવે રિટેલ ટ્રેડના સંદર્ભનો કોઈ પ્રશ્ન એમનો હોય કે મિતેશભાઈ અહીં બેઠા છે, એમને પણ રિટેલ ટ્રેડનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ એકલા કેવી રીતે કરી શકે? એટલે એમને એસોસિએશન થ્રુ આ પ્રવૃત્તિ કરાવવી પડે. હવે એવા તો 150 એસોસિએશન છે, તો 150 એસોસિએશન સરકાર સુધી પહોંચી શકતી નથી. એટલે આ એસોસિએશનો ચેમ્બરને રજૂઆત કરે કે અમારો આ પ્રશ્ન છે, અને ચેમ્બર આ એસોસિએશન વતી જે તે પ્રશ્નને સચોટ રીતે મૂલ્યાંકન કરીને આ પ્રશ્ન ઉઠાવવા જેવો છે કે એ પણ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. કેટલીક વખત એવું બને કે આપણા ધંધાના બે જ વ્યક્તિઓના સામસામા હિત ટકરાતા હોય ત્યારે ચેમ્બરની ભૂમિકા એ હોવી જોઈએ કે કોઈના પણ હિતને નુકસાન ન થવું જોઈએ અને કોઈનું હિત કારણ વગર આગળ પણ નહીં વધારવું જોઈએ, જે બિલકુલ જરૂરી ન હોય. તો આ સમતોલ ભૂમિકા ચેમ્બર ભજવે છે. આ ચેમ્બરનો સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. ચેમ્બરનો બીજો બેનિફિટ અને સૌથી વધારે જે છે તે દક્ષિણ ગુજરાતનો કોઈ પણ ઉદ્યોગપતિ જ્ઞાનથી વંચિત નહીં રહી જાય એ બહુ જરૂરી છે. વર્તમાન પ્રવાહો કયા કયા ચાલે છે ધંધાની અંદર? આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો જમાનો આવી ગયો છે. ચેમ્બર એવા કાર્યક્રમ કરે છે કે જેની અંદર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા તમે ટેક્સટાઇલના ક્ષેત્રમાં કઈ રીતે આગળ વધી શકો, ડિજિટલ મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા તમે કઈ રીતે તમારા ધંધાને પ્રોત્સાહન આપી શકો, આ બધી કરંટ વાતો છે. તો ચેમ્બર આ પ્રકારના 300 કાર્યક્રમો આખા વર્ષમાં કરે છે. અને આ 300 કાર્યક્રમો થકી સેમિનાર, કોન્ક્લેવ, વર્કશોપ થકી આપણે આપણા મેમ્બરોને પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ અને એને જ્ઞાન આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને સાથે સાથે આપણા પોતાના જ્ઞાનની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. ચેમ્બરનું ત્રીજું મહત્વનું કાર્ય એટલે એક્ઝિબિશન. આ ચેમ્બર સમગ્ર ભારતની એકમાત્ર ચેમ્બર એવી છે જેની પાસે આટલી મોટી જગ્યા છે. આ આપણો 1,16,000 સ્ક્વેર ફીટનો ડોમ એર કન્ડિશન પિલરલેસ, ભારતની કોઈ ચેમ્બરની કોઈ પ્રાઇવેટ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે પણ આટલો મોટો પિલરલેસ ડોમ નથી. ડોમ હોઈ શકે પણ એ થાંભલા વાળો છે, આપણો થાંભલા વગરનો છે, કે જેથી તમે એક સરખું કંઈ પણ પ્લાનિંગ કરી શકો, કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર કર્યા વગર. અને 15 એક્ઝિબિશન દર વર્ષે ચેમ્બર કરે છે. હવે તમને થાય કે ચેમ્બર એક્ઝિબિશન કરે તેનાથી ફાયદો શું? તો ફાયદો એ કે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના માધ્યમ થકી ઉત્પાદકતાને સીધું માર્કેટ મળી રહે છે.
અહીં જે સિટેક્સ પ્રકારનું ટેક્સટાઇલ મશીનરીનું એક્ઝિબિશન થાય, આજે એ એક્ઝિબિશન જેવું ખોલે એટલે 15 દિવસની અંદર 6000 મીટર ભરાય જાય. કારણ કે એ મશીનરીના ઉત્પાદકને ખબર છે કે અહીં જે જોવા આવશે તે બુક કરાવીને જશે એટલે 6 મહિના સુધી એનું બુકિંગ આપણને મળી રહે. એટલે આ ત્રીજી પ્રવૃત્તિ. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ વિજયભાઈ મેવાવાળા અને માનનીય મંત્રી રીંગાભાઈ માંડલિયાવાળાનું સ્વાગત છે. ચોથો કાર્યક્રમ અને તે ઇન્ટરનેશનલિઝમ, આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ બંધુત્વ ભાઈચારો. સમગ્ર દેશના લોકોને વિદેશમાં અને વિદેશના મિત્રોને આપણા દેશમાં શું ફાયદો છે એટલે કે બાયલેટરલ બિઝનેસ ઓપોર્ચ્યુનિટી ચેમ્બર આપે છે. અને પાંચમું એ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે કે સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વ. કોઈ પણ જગ્યા ઉપર કઈક કેલામિટી આવે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર તો ચેમ્બર એની પડખે ઊભી રહે છે. આમ આ 5 કાર્યક્રમ થકી ચેમ્બર ચાલે છે. એવી ચેમ્બરની અંદર આજે આપ પધાર્યા છો. હું વિજયભાઈ મેવાડા પ્રમુખશ્રીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ સ્વાગત પ્રવચન માટે ઉપસ્થિત થાય. અને જે લોકો મિત્રોને મેં કહ્યું જે નથી સભ્ય તેઓને વિનંતી છે કે આજે સભ્ય પદ ફોર્મ લઈને જજો. 18,880 ની લાઈફ મેમ્બરશિપ દ્વારા તમે સમગ્ર જીવનનો નાતો ચેમ્બર સાથે બાંધી શકો છો અને તમને કલ્પી ન શકાય એટલા બેનિફિટ્સ તમે જાતે પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આટલી વિનંતી સાથે વિજયભાઈ મેવાડા. ગુડ ઇવનિંગ એવરીબડી. અમારા ઉપપ્રમુખ છે બધી માહિતી આપી દીધી હશે તમને કે ભાઈ પછી બોલે ને પછી બધું બધા બોલી નાખે છે ને એટલે આજે વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામ આયોજિત આ સેમિનારમાં તરત આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઓનલાઈન નો જમાનો છે. આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જતી હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈતી હોય, દાખલા તરીકે કોઈને નાઇકીના શૂઝ લેવા છે તો પહેલા સ્ટોરમાં જશે, સાઈઝ નક્કી કરશે, જોશે ઓકે છે ને પછી મંગાવશે ઓનલાઈન સાઈઝ નક્કી કરીને. ને અમારા ફેબ્રિકમાં તો વાત કરું, હું ફેબ્રિક ને ગાર્મેન્ટમાંથી અને કાપડ ક્ષેત્રમાંથી આવું છું. તેમાં પણ ઓનલાઈનમાં તો એવું હોય છે કે એક વસ્તુ જોઈતી હોય ને એક્સેલ સાઇઝ કા લાર્જ સાઇઝની તો 3 મંગાવશે, મીડિયમ, લાર્જ ને એક્સેલ. જે ફિટ થઈ તે રાખશે ને બાકીની રિટર્ન કરશે. એટલે ઓનલાઈનમાં ફાયદા બી ઘણા છે ને સેલરને નુકસાન પણ છે. વોલમાર્ટની વાત કરું તો હમણાં જ આપણા સ્પીકર છે તેમને કીધું કે હવે આપણે બધું કરીએ ને ઓનલાઈન વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામને વોલમાર્ટને ઇન્ડિયામાં જ લઈ આવો તો વધારે બેનિફિટ છે. હું કેનેડા ગયો તો અમે વોલમાર્ટમાં ગયા હતા, ત્યાં આપણે એવું લાગ્યું કે ઇન્ડિયામાં હોવું જોઈએ આ વોલમાર્ટ. એનીવેઝ મંચ પર ઉપસ્થિત આજના મુખ્ય વક્તા વોલમાર્ટ વૃદ્ધિના રિજનલ હેડ છે હર્ષલભાઈ તાનાવાલા, એસડીસીસી એના સાથે મિત્ર અને મારા ઉપપ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, માનદ મંત્રી શ્રી નીરવભાઈ માંડલેવાલા, ચેમ્બરની એમએસએમઈ કમિટીના ચેરમેન મનીષભાઈ બજરાણ, ડાયનેમિક છે અમારા ભાઈ એમએસએમઈ કમિટીના ચેરમેન અને ઘણા ઉત્સાહી છે, ઘણા સારા પ્રોગ્રામો થઈ રહ્યા છે. સભ્ય શ્રી દિલીપભાઈ ગેહલોત અને અહીં ઉપસ્થિત એમએસએમઈ ઉદ્યોગ સાહસિકોનું હું આજના કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભારતના નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો એટલે એમએસએમઈસ દેશના આર્થિક વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. એમએસએમઈસને સરકાર ઘણું પ્રોત્સાહન આપી રહી છે અને આજે ગુજરાત એ એમએસએમઈસનો હબ કહેવાય છે. અને ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં જેટલી એમએસએમઈસ છે તેમાં 50% એમએસએમઈસ સુરતમાં છે એવો રેકોર્ડ બતાવે છે. અને એમએસએમઈ થકી જ આપણો જીડીપી ગુજરાતનો અને ગુજરાત થકી ભારતનો જીડીપી આટલો ઉપર હોય છે. અને જીડીપીમાં ગુજરાતનો જીડીપીનું સ્થાન પ્રથમ છે. વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામે 50,000થી વધુ એમએસએમઈસને તાલીમ આપવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. અને આ તાલીમ એમએસએમઈસના ઉદ્યોગોની ડિજિટલ ક્ષમતા વધારવા, એક્સપોર્ટ માટે તેઓને તૈયાર કરવા અને વ્યવસાયમાં તેઓની કાર્યક્ષમતા વધારવા પર કેન્દ્રિત છે. આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ઉદ્યોગકારોને વૈશ્વિક માર્કેટિંગમાં પ્રવેશ મેળવવા અને ગ્લોબલ સ્પર્ધાત્મક થવા માટે મદદ કરવામાં આવે છે.
અમારો પ્રમુખશ્રીએ તમને કીધું જ હશે એવું મને ખાતરી છે કે અમે ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના ક્લાસ ચલાવીએ છીએ. ભાઈ વાત થઈ ઉપપ્રમુખશ્રી? અચ્છા. અને ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટના ક્લાસ થકી જો એ ક્લાસમાં તમે એટેન્ડ થાવ તો આ વોલમાર્ટ વૃદ્ધિમાં તમને જે અત્યારે આપણા સ્પીકરો આપણા કહેવાના છે તેમાં હજુ વધુ સહાયતા તમને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામ દ્વારા એમએસએમઈઝને અનેક લાભો છે. આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત એમએસએમઈઝને માર્કેટિંગ, લોજિસ્ટિક, ગુણવત્તા મેનેજમેન્ટ અને ટેકનોલોજી માટે જરૂરી કુશળતા મેળવવાની તક માટે તાલીમ અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. તેઓને વોલમાર્ટની વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં જોડાવાની તક મળે છે. આ પ્રોગ્રામ દેશના નાના મધ્યમ ઉદ્યોગોને એક્સપોર્ટ માટે તૈયાર કરે છે. ભારતની એક્સપોર્ટ વધારવાથી રાષ્ટ્રની આવક વધશે અને મોટી સંખ્યામાં રોજગારી તકો સર્જાશે, જેને કારણે ભારતીય અર્થતંત્ર મજબૂત થશે અને આપણે સૌ વર્ષ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતની કલ્પનાને સાકાર કરી શકીશું. હમણાં અમે કેનેડા જઈને આવ્યા ત્યારે આપણે ત્યાં ચેમ્બરના જ કામથી ગયો હતો, બિઝનેસના જ કામથી ગયો હતો. એટલે એક જ લક્ષ્ય હતું કે ત્યાં શું બિઝનેસ છે. બે નંબરની વાત છે કે એમની સાથે રાજકીય સંબંધ અત્યારે આપણા બહુ ઠીક નથી, પરંતુ ત્યાં એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે બિઝનેસની કે ના પૂછો વાત. અને આવી રીતે આપણા દેશમાંથી શું આપણે એક્સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ તે જાણવું હોય ને તો આવા પ્રોગ્રામોને આપણે એટેન્ડ કરવા જોઈએ. અને મેઇન એક્સપોર્ટ કરવાની મેથડ શું હોઈ શકે, પ્રોપર લિંક શું હોઈ શકે. અત્યારે અમે કેનેડામાં એમ જ થાય કે આપણે સુરત જઈને આટલું આ કરીએ પેલું કરીએ, પણ કારણ કે એટલી બધી ત્યાં રિક્વાયરમેન્ટ છે. તમને સેનેટરીથી માંડીને હોટલ, હોમ ફર્નિશિંગ, હોસ્પિટલના કપડાઓ, હોસ્પિટલના કર્ટેન, આપણી ત્યાં જ સુરતમાં ફાયર રેઝિસ્ટન્ટ કપડું બને છે. જે ફાયર થાય તો એ કપડાને અસર ન થાય તે હોસ્પિટલમાં જોઈએ છે. આ લોકોને કર્ટેન જોઈએ છે. હોટેલ્સમાં ટોવેલ જોઈએ છે, ચાદર જોઈએ છે. હોટેલમાં મોટા કર્ટેનો જોઈએ છે. એટલી કારણ કે ત્યાં ટુરિઝમ પ્લેસ છે અને ત્યાં આગળ ટુરિઝમ પ્લેસમાં અત્યારે એ લોકો નવા ટુરિઝમમાં ઘણા બધા નવી હોટલો અને નવી હોસ્પિટલો અને એજ્યુકેશન સેન્ટરો ઘણા ખુલી રહ્યા છે. એટલે ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. માટે આવા ઓનલાઈન જે વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ ઓનલાઈન આ પ્રોગ્રામ અત્યારે જે કરી રહ્યા છે ઓનલાઈનનું શીખવા માટે, એક્સપોર્ટનું શીખવા માટે, તેમાં આપ સર્વે અહીં પધાર્યા છો તો ફરી હું આપ સર્વેનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારત માતા કી જય. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ પ્રમુખશ્રી. હવે ફ્લોરલ ફેલિસિટેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ મોમેન્ટો ટુ અવર વર્ધી સ્પીકર શ્રી હર્ષલભાઈ તાનાવાલા. Please all the office bearers do join. પ્રોગ્રામને આગળ વધારતા શ્રી સેક્રેટરી શ્રી હીરવભાઈ માનલેવાલાને રિક્વેસ્ટ કરું અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ, આ પ્રોગ્રામ વિશે થોડી માહિતી આપે. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries દ્વારા આયોજિત વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ એવા વિજયભાઈ મેવાવાલાજી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિખિલભાઈ મદ્રાસી, આજના વક્તા એવા હર્ષલભાઈ તાનાવાલા, અમારા ચેમ્બરના ગ્રુપ ચેરમેન જેના અંતર્ગત એમએસએમઈ કમિટી આવે છે એવા કિરણભાઈ ઠુમ્મર, આ કમિટીના ચેરમેન, એમએસએમઈ કમિટીના ચેરમેન અને જેઓ સતત જ્યારથી ચાર્જ લીધો ત્યારથી એમએસએમઈના માટે અનેક કાર્યક્રમ કરે છે એવા સીએ મનીષભાઈ બજરંગ, કમિટીના કો ચેરમેન એવા દિલીપભાઈ ગેહલોત,
અને ઉપસ્થિત સૌ મિત્રો. મિત્રો, આજના વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ સપ્લાય ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામનું આયોજન એમએસએમઈ ઉદ્યોગ સાહસિકો પોતાના વેપાર ધંધાનો વ્યાપ સુરતના લોકલ લેવલથી ઉપર ઉઠીને પેન ઇન્ડિયા ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ દ્વારા કેવી રીતે કરી શકે તે માટેનું ઊંડાણપૂર્વક સમજ આપવા માટે કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, ભારતના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને $5 ટ્રિલિયન બનાવવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે. તે મુજબ ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં સતત વૃદ્ધિ થતા જોવા મળી રહી છે. ભારતના વિકાસમાં માઇક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝને મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રકારની યોજનાઓ અને લાભો આપવામાં આવે છે. તે સ્થિતિમાં વાણિજ્યના ભવિષ્યમાં એક પગલું ભરી એમએસએમઈઝ માટે ડિજિટલ યુગમાં વિકાસના દરવાજા ખોલી ઉદ્યોગ સાહસિકો તેમના વ્યવસાયને ફ્લિપકાર્ટ માર્કેટપ્લેસ જેવા અનેક મોટા પ્લેટફોર્મ સાથે કેવી રીતે લિંક કરી શકે અને ઈ કોમર્સની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને તમારા સ્ટાર્ટઅપને કેવી રીતે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જઈ શકે એને ધ્યાનમાં રાખીને આજના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો, છેલ્લા 2 દિવસ ચેમ્બરનું આખું ડેલિગેશન દિલ્હી ખાતે અલગ અલગ દેશોના હાઈ કમિશનર અને કોન્સ્યુલેટ્સની સાથે મીટિંગમાં હતું. આનો ઉલ્લેખ એટલે મારે કરવો પડે છે કે એની અંદર પણ ઈ કોમર્સ અને એક્સપોર્ટનો વિષય આવ્યો. અમે ગઈકાલે સેશેલ્સ અને માલ્દીવ્સના હાઈ કમિશનરની સાથે બેઠા હતા. તો જેમ પ્રમુખશ્રીએ કીધું કે ઘણી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બહાર હોય છે, તો ત્યારે અમારે ચર્ચામાં આવ્યું કે સેશેલ્સ અને માલ્દીવ્સ જે બેઝિકલી હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીની સાથે જોડાયેલા છે, તો એના માટે સુરતના માટે શું મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તો સુરત માટે એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે જે રીતના રવિ ફૂટનાવાલા આપની વચ્ચે ઊભા છે, જે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ્સની અંદર કામ કરે છે, તો આવા વ્યક્તિ જે બેગ્સ બનાવે, બેડશીટ્સ બનાવે, તેઓને અમે ચેમ્બર દ્વારા આ બધા દેશોની સાથે બી કનેક્ટ કરવા ઈચ્છી રહ્યા છે, જેથી ત્યાંના દેશોની અંદર ત્યાંના હોટેલ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટને એ લોકોને કાપડ બેડશીટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, તો ચેમ્બર તેઓને અહીંયાના મેન્યુફેક્ચરરની સાથે કનેક્ટ કરે અને બંને લોકો બિઝનેસ કરી શકે. એ જ સંદર્ભે આ એક ઈ કોમર્સની માહિતીને આપવા માટે આજનો વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ કાર્યક્રમનું બી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ધન્યવાદ. Hello, Dilip Bhai, our MSME committee member, to introduce our worthy speaker of the day. Thank you, sir. It is my pleasure to introduce Mr. Harshal Tanawala, a distinguished professor with an impressive academic background, holding a BBA and MBA degree. He currently serves as a regional head for the West Zone at Swasti Walmart Vridhi, where he is actively engaged in empowering MSME for the past 3.5 years. Mr. Harshal brings with him a wealth of experience spanning over 14 years in sales leadership, including more than a decade in the e-commerce sector. His expertise extends to business development, marketplace onboarding, and guiding businesses toward growth in the digital era. Prior to his current role, he has contributed to the success of renowned organizations such as eBay and the Paytm. Today, Mr. Harshal will share his extensive knowledge and valuable insight on e-commerce, offering us a deeper understanding of the dynamic and transformative industries. With a brief introduction, I am honored to invite Mr. Harshal Tanawala to address this esteemed gathering. Please join me with a welcoming him with a huge round of applause. गुड इवनिंग एवरीवन. थैंक यू सो मच चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की वॉलमार्ट वृद्धि को और सभी कमेटी मेंबर्स और जो भी एक्टिवली ये इवेंट पॉसिबल हो पाए उसके लिए जो भी एक्टिव थे उन सभी को थैंक यू. और वी कैन स्टार्ट विथ अवर प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम क्या है? ये एक CSR एक्टिविटी है by Walmart International. It was launched in 2019 by our then MSME Minister Nitin Gadkari ji. After that,
कोविड हैपेंड और अभी ये प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल है, प्लस ये अगर आप रिक्वेस्ट पे हम फिजिकल भी पॉसिबल है ये प्रोग्राम। आप स्क्रीन पर थ्री लोगोस देख पा रहे होंगे, तो जैसे फ्लिपकार्ट, स्वस्ति, तो आपको भी कंफ्यूजन होगा कि ये फ्लिपकार्ट भी है, वॉलमार्ट भी है, स्वस्ति, ये सभी चीज क्या है। तो वॉलमार्ट वृद्धि एक प्रोग्राम का नाम है जो एक वॉलमार्ट इंटरनेशनल के द्वारा CSR एक्टिविटी है। फ्लिपकार्ट इज अ पार्ट ऑफ वॉलमार्ट नाउ, तो हम उसको भी सपोर्ट करते हैं कि जैसे ऑनबोर्डिंग सपोर्ट हो गया और लिस्टिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करना। स्वस्ति ये एक NGO है जो कि बेंगलोर बेस्ड है, 20 इयर्स पुरानी ये फर्म है, और स्वस्ति में हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं जो इंडस्ट्री में दूसरे कंपनीज को और हेल्प करते हैं जो सोसाइटी में कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए। तो स्वस्ति ऑफिशियल प्रोग्राम पार्टनर है वॉलमार्ट वृद्धि का। ये जस्ट शॉर्ट ब्रीफ है कि these are our founders of Catalyst Group. Swasti is a part of Catalyst Group, और शिव कुमार एंड N रघुनाथन आर द फाउंडर्स। ये 30 इयर्स पुरानी कैटलिस्ट ग्रुप है, और हमने ऐसी ब्रांड्स के साथ मार्क्स एंड स्पेंसर है, H&M है, लीवाइस है, गैप, ऐसे ब्रांड्स के साथ हमने CSR एक्टिविटीज की हुई। 2022 दिसंबर में हमारा ये NSIC के साथ MOU हुआ था इन प्रेजेंस ऑफ MSME मिनिस्टर एट दैट टाइम और मिस्टर नारायण राणे जी। ठीक है, तो ये इवेंट दिल्ली में कंडक्ट हुआ था, और तब से NSIC भी हमारे साथ कोलैबोरेशन में वर्क करता है MSMEs के लिए। दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वॉलमार्ट भी एम कर रहा था कि 50,000 MSME को इंडिया में कैपेबल बनाया जाए, और हमने ऑलरेडी 60,000 की ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी है। और ये ट्रेनिंग पूरे इंडिया में हर लोकेशन पे अवेलेबल है, हमारी टीम भी अवेलेबल है। और ये ट्रेनिंग का 3 मेन पिलर्स है, दैट इज फर्स्ट इज डेवलप कैसे करें आपको। तो जो MSME को हम पहले हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करवाते हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं जिसके अंदर कंटेंट दिया गया है। ये कंटेंट इंक्लूड कर रहा है राइट फ्रॉम आप सप्लायर से प्रोक्योरमेंट करते हैं अपनी प्रोडक्ट का, मतलब रॉ मटेरियल, वहां से लेकर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिनिश प्रोडक्ट तक में जितने भी डिपार्टमेंट है, उन सभी डिपार्टमेंट पे ये चीजें कैसे आप अपग्रेड कर सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। दूसरे ये पिलर हमारा कनेक्ट, हम फ्लिपकार्ट से कनेक्ट कर देते हैं मार्केट प्लेस पे, जिससे आप अपना बिजनेस को B2C प्लेटफॉर्म या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। एक बार आप ये डोमेस्टिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर पाएंगे, फिर उन्हीं को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो ग्लोबल भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है walmart.com, उस पर आप कनेक्ट कर पाए। और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो एक ट्रेनिंग के थ्रू प्रोसेस होती है, क्योंकि क्या है कि हम बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो एक हम काफी बार हम मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए ये लर्निंग मॉड्यूल इस हिसाब से बनाए गए हैं। ये वही है क्यों हमें वॉलमार्ट वृद्धि के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक MSME कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, प्लस हम मार्केट में MSME को पूरा जो ट्रेनिंग है हर एक डिपार्टमेंट की प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ई-कॉमर्स क्यों चूज करना चाहिए हमें, व्हाई ई-कॉमर्स इज इंपॉर्टेंट एंड वाइज चॉइस फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो पहला है कि रिड्यूस कॉस्ट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सबसे पहली चीज, आप जैसे ही सपोज कोई लोकल स्टोर है, तो लोकल स्टोर का अपना खुद का एक वैल्यू होता है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट बेयर करना होता है, और लोकेशन ऐसा चाहिए जहां पर आपके वॉक इन कस्टमर्स भी आए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ई-कॉमर्स पे आप जुड़ने पर ये चीजें आप अवॉइड करके डायरेक्टली आप पैन इंडिया मार्केट को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है लो मार्केटिंग कॉस्ट। अगर आप फिजिकली जो ग्राउंड मतलब हम लोकली शोरूम वगैरह एस्टेब्लिश करना हो, तो जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा होता है कंपैरिजन टू ऑनलाइन मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो इसमें क्या आपको एक 24/7 विजिबिलिटी मिलती है। आप रात को सो रहे हो फिर भी आपके ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी है आपको, मतलब
हम यहाँ पर सपोज कोई आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहो या फिर कोई शोरूम एस्टेब्लिश करना चाहो, तो क्या है, एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पर आपको लोगों को भी आने वाले को कन्वीनियंस ही रहे। लेकिन इसमें आपके पास ये है कि आपको अगर चीप एरिया में, मतलब जहाँ पे रेंट कम है या प्रॉपर्टी कम दाम में मिल रही है, वहां पर भी आप लोकेटेड हो, सिर्फ एक क्राइटेरिया रहेगा, पिन कोड आपका सर्विसेबल होना चाहिए फॉर कुरियर पार्टनर्स। तो वो क्या है कि आप वहां से भी अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी चीज है कि ये इजियर है, फास्टर है, प्लस पेमेंट इस पे कैसा है, क्रेडिट नहीं देनी है। जब हम 90 दिन की क्रेडिट देते हैं तो हमें कितने कॉल लगाने पड़ते हैं पेमेंट लेने के लिए। जब यहाँ पर कैसा है कि पेमेंट साइकिल बनी हुई है, वही पेमेंट साइकिल के बेस पर आपको रेगुलर पेमेंट्स आते रहेंगे और वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। पूरा रिपोर्ट भी मिलेगा कि आप कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न है और उस बेस पर कितना पेमेंट आया। पूरे पैन इंडिया का मार्केट मिलता है, मच बिगर मार्केट। आप अगर यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो तो एक लोकल एक दायरा होता है कि 15 से 20 किलोमीटर का, कि तब वहां तक ही कोई कस्टमर आपके यहाँ वॉक इन करेगा। पूरे पैन इंडिया मार्केट आप कैप्चर कर पाएंगे अगर ई कॉमर्स पे होता। दूसरा है कि लाइक नंबर ऑफ ऑप्शन, आप जैसे आपके पास ज्यादा स्टॉक है तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस में आप कितना डिस्प्ले कर पाएंगे। डिस्प्ले यहाँ पर कैसा है कि आप अपना जितना भी स्टॉक है, पूरा का पूरा स्टॉक आप अपलोड कर पाएंगे लिस्टिंग के जरिए। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि इतनी ही लिस्टिंग करनी है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने ऑप्शंस के हिसाब से एन नंबर ऑफ लिस्टिंग्स भी कर पाएंगे। सो ये प्रोग्राम का बेनिफिट क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम बिजनेस आपको सपोर्ट करते हैं कि जैसे एमएसएमई के साथ आप कैसे ग्रो करना है हर एक क्षेत्र में, उसके बारे में पूरा समझाया। ये आगे हम बात करेंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है वो जैसे हम पढ़ते हैं ना सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, उसी प्रकार से ये प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है। इसमें 2 पार्ट में डिजाइन किया गया है। जैसे जो बिजनेस फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, वो वहां पर बेसिक मॉड्यूल्स है जिसमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। उसके एडवांस जाना है, किसी को अकाउंटिंग रिलेटेड इश्यू है तो वो कैसे सॉफ्टवेयर के थ्रू रिजॉल्व कर सकता है। किसी को ये इश्यू है कि इन्वेंट्री डेड स्टॉक को कैसे मैनेज करे, वो कैसे मैं, तो इसके बारे में डिटेल में ट्रेनिंग नेक्स्ट एडवांस कोर्स में दी गई है। ये टॉपिक्स है 31 टॉपिक्स। आप सुटेबल जिस टॉपिक पर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उस टॉपिक को आप ज्यादा कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनोवेशन भी एक टॉपिक है, डिजिटल एनेबलमेंट एक टॉपिक है। आपको जैसे वुमन ओन बिजनेस है तो वुमन को किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब ये मेल डोमिनेटेड मार्केट हो तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझाया गया है। ये हम फ्लिपकार्ट ऑनबोर्डिंग जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में है कि कैसे हम हैंड टू हैंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्लस डेली हमारे प्रोग्राम के साथ जो भी जुड़ा होता है उनको डेली हमारा एक 3:30 का मंडे टू फ्राइडे सेशंस होता है जिसमें आपको जुड़ना है। आपके फ्लिपकार्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको गाइड करते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सके। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, टॉपिक को डिटेल में हम नहीं ले सकते, इसलिए जो टॉपिक है क्या किस प्रकार की लर्निंग प्रोवाइड करती है आपको, तो उसमें से कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स हम देखेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा। अभी जैसे आप देख रहे हो जो पहला टॉपिक है, यहाँ पर आपको लिस्टिंग का टाइटल दिया गया है। वो टाइटल आप देख पाएंगे कि जिसमें जॉन प्लेयर स्लिम फिट थर्मल जेंट्स जैकेट विथ 3M पैडिंग, डिटेल में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की गई है जिसमें स्पेसिफिकेशन है, जिसमें उनका साइज फिट वो सब मेंशन है। ये भी सपोज आप ऐसे लिस्टिंग करते हो तो कैसे आपकी विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर नीचे वाली लिस्टिंग देखोगे तो कैंप सूत्रा स्टिच मतलब जैकेट, स्लिम जैकेट, राइट, ओके, तो वो इतना शॉर्ट में ब्रीफ किया गया है कि आपको कोई सर्च भी करेगा तो आपकी प्रोडक्ट वो देख ही नहीं पाएगा। तो काफी बार हमारी कंप्लेंट रहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स में हमने लिस्टिंग तो कर दी लेकिन सेलिंग ही नहीं आ रहा है।
तो सेलिंग क्यों नहीं आ रहा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके बारे में भी थोड़ा समझाया गया है। साथ में आप देखोगे जो फोटोग्राफ है, जो जैकेट पहने हुए मैन है, आप देख पाएंगे कि वहां पर 4 अलग अलग पोज में फोटोज लिए गए हैं, एक उसमें क्लोजअप भी है। प्लस अगर थोड़ा और हेल्पफुल हो से कस्टमर के लिए तो आप वीडियोस भी रख सकते हो। तो कैसे फोटोग्राफी होनी चाहिए, फोटोग्राफी आप अपने मोबाइल से खींचकर, अगर अच्छी क्लैरिटी वाली फोटोज ना हो तो वो फोटोज की वजह से भी आपके प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि मतलब आप फिजिकल टच फील नहीं कर सकते ना, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन बाई करते हो तो आपको तो ऑनलाइन जब बाई करते हो तो सारी चीजें डिपेंड रहेगी उसके स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन कितना डिटेल में दिया गया है और उसकी फोटोग्राफी कितने अच्छी तरीके से लिए गए, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इस प्रकार का मुझे क्वालिटी मिलेगा। अगर वैसी एक्सपेक्टेशन ना हो तो फिर आता है फिर रिटर्न का चक्कर। कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो एक स्पॉन्सर्स एड कैसे कर सकते हैं आप, जो सारे पोर्टल्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप अपने स्टॉक को क्लियर करना है, तो जैसे भी कोई बिग बिलियन डे जैसा कोई सेल आया तो आप कैसे अपने ओल्ड स्टॉक को क्लियर कर सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बारे में समझाया गया है, जिससे आपका डेड स्टॉक या आपका जो करंट स्टॉक है वो ज्यादा वैल्यू में ना बढ़ता चला जाए। इसमें ये भी बताया गया है कि रिटर्न्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप ठीक से अच्छी क्वालिटी का बॉक्स में पैकेजिंग करके नहीं भेजोगे तो ये प्रोडक्ट आपका डैमेज वहां पे रिसीव होगा, कस्टमर रिटर्न करेगा और वो रिटर्न करने पर फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा क्योंकि रिटर्न चार्जेस है या उसका आपका रिटर्न रेशियो बढ़ेगा। तो प्रॉपर पैकेजिंग के बारे में समझाया गया है। प्लस आपको ये नीचे आप देख पा रहे हो कि 2 लिस्टिंग है जिसमें एक में प्रॉपर फोटोग्राफी नहीं है और एक में ठीक से फोटोग्राफी दी गई है। तो ये जो प्रॉपर फोटोग्राफी दी गई है इसकी वजह से क्या है कि आप लोग आपका जो प्रोडक्ट है वो जब भी कस्टमर के हाथ में पहुंचेगा वो उसके साथ कंपेयर कर पाएगा कि जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और जो एक्चुअल फोटोग्राफ था उसमें कितना डिफरेंस है। अगर सिमिलर होगा तो वो रिटर्न नहीं करेगा। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड क्या है और वॉलमार्ट मार्केट प्लेस में आप कैसे एनरोल कर सकते हो, इसके बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे। सो वॉलमार्ट एक रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, इसमें 100 मिलियन विजिटर्स है मंथली उस वेबसाइट पर। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड फीस नहीं है, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर मंथली फीस होती है स्टैंडर्ड, यहाँ पर कोई फीस नहीं है। आप n नंबर ऑफ लिस्टिंग्स कर सकते हो, यहाँ पर लिस्टिंग के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कोर्सेज के बारे में समझाएंगे। सपोज ये MSME को सपोज एक्सपोर्ट करना है तो हमें तो पहले यही नहीं पता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या कंप्लायंस है बाहर US मार्केट में, कनाडा मार्केट में, तो वो कंप्लायंस के बारे में पूरा ये डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है कि सपोज LUT मतलब लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन से चाहिए, कौन सा आपको सर्टिफिकेशन चाहिए US मार्केट के लिए, ये चीजें आपको बताई गई। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टम्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, यहाँ पर ई-कॉमर्स कैसे ग्रो कर सकते हो वो है। फॉरेक्स मैनेजमेंट में बताया गया कि आपका GST रिक्वायर्ड है और उसके बारे में आपका जब एक्सपोर्ट सेल्स होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, आप कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो, आप कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब आपको पता नहीं है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स निकालना है लेकिन वो कौन मुझे निकाल के देगा, उसके बारे में भी पूरा डिटेल में समझाया गया है इसके अंदर। फिर आता है पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स। तो पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में जैसे हर एक कंट्री का लॉजिस्टिक चार्जेस डिफरेंट होता है, प्लस वेट और डायमेंशन के हिसाब से आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है पहले एडवांस में जब भी आपकी प्रोडक्ट कोई डिस्पैच हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर डिटेल में समझने को मिलेगी कि कैसे मैनेज करोगे उसको भी। फिर है FTP एंड प्रमोशनल स्कीम्स। तो आप हर एक चीज में जैसे हम GST में रिबेट लेते हैं, रिफंड लेते हैं, वैसे ही एक्सपोर्ट में भी रिफंड का ऑप्शन होता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो।
तो वो कैसे आप ले सकते हो, इसके बारे में ये टॉपिक में समझाया गया है। वहाँ का बिजनेस एथिक्स एंड कल्चर, यूएस मार्केट का क्या कल्चर है, क्या ट्रेंडिंग है, वो मार्केट को कैसे टैप करोगे, उसकी यहाँ की नीड को, वहाँ के लोगों के टेस्ट को कैसे समझ पाओगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया गया है इस टॉपिक के अंदर। और वॉलमार्ट मार्केट प्लेस में आप अपने कैसे ग्रो कर सकते हो, वॉलमार्ट की वेबसाइट के ऊपर उसकी डिटेल्स पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाई गई है यही प्रोग्राम के अंदर। सो वॉलमार्ट ऑनबोर्डिंग और सेलर सेंटर जो है हमारा, इसमें आपको ऑनबोर्डिंग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्लस आपको कोई भी दिक्कत आ रही है लिस्टिंग में भी तो पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे लिस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसी कोड मैंडेटरी है, जीएसटीआईएन मैंडेटरी है, पैन कार्ड चाहिए, एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इसमें एक क्लॉज है कि अगर आपका एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका क्या स्केल का बिजनेस है वो मैटर करेगा, और वो केस टू केस बेसिस पर उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। फिर है आपका ई कॉमर्स एक्सपीरियंस, आपका डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आपका ग्लोबली कितना एक्सपीरियंस है, वो भी इवेल्युएशन होगा। और यूएस रिटर्न एड्रेस मैंडेटरी होता है। अभी यूएस रिटर्न एड्रेस काफी लोगों के पास नहीं होता है, तो यूएस रिटर्न एड्रेस आप कैसे लोगे? या तो आपको अपने वहाँ के फ्रेंड रिलेटिव्स का एड्रेस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि एक जिंडस करके कंपनी है जो $35 में वन टाइम पेमेंट लेकर आपको यूएस एड्रेस प्रोवाइड करती है, और ये $35 एक्सक्लूसिवली विद वॉलमार्ट ही है। अगर वॉलमार्ट के अलावा अगर आप करने जाओगे तो ये $55 है। दूसरी चीज है, यही आपका जो रिटर्न एड्रेस है वो आप ई कॉमर्स के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर पाएंगे, ईबे हो गया, इट्सी हो गया, वहां पर भी इसको यूज कर पाएंगे ये रिटर्न एड्रेस को। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे अगर प्रोप्राइटर फर्म है तो जीएसटीआईएन है, फिर अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो लैंडलॉर्ड का एनओसी कंपलसरी है, और या तो फिर 90 डेज के अबव वाला यूटिलिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप डीड एलएलपी है तो जीएसटी है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। मुझे एक माइक मिलेगा यहाँ पे आने के लिए, मुझे विजिबल नहीं होगा। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपको कुछ क्वेरीज भी होगी, तो कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास है वो हमने पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे दे सकते हैं बताया। जैसे व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी ऑन वॉलमार्ट, व्हाट इज द रिटर्न पॉलिसी ऑन वॉलमार्ट। तो 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है, इसमें आपका जब भी शिपमेंट हो जाता है आफ्टर 7 डेज वो 30 डेज काउंट होना शुरू होता है, ठीक है। और आप रिटर्न्स को कैसे हैंडल करोगे, जैसे मैंने आपको आगे बताया यूएस शिपिंग रिटर्न एड्रेस मैंडेटरी है। दूसरी चीज, कौन सी टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज है वॉलमार्ट पर, तो जैसे होम डेकोर हो गया, वेस्टर्न वेयर हो गया, ज्वेलरी हो गया, these are the few top contributing categories। और रेफरल फी क्या है, मतलब क्या कमीशन चार्ज करता है वॉलमार्ट, तो वो है करीब 6 to 15%, और ज्वेलरी के कैटेगरी में 20% है, बट इफ यू आर सेलिंग ज्वेलरी $250 अबव तो वो उसका 5% ही कमीशन है। So how will I receive my payment of sales done at Walmart? तो पेमेंट गेटवे करना मैंडेटरी है, पायोनियर, पिंगपोंग या पेपल, ये तीनों में से कोई भी एक पेमेंट गेटवे होना मैंडेटरी है, और इनके अप्रॉक्स कमीशन है 2 to 3% मैक्सिमम। When will I receive my payment in bank account, or what is payment terms or condition on Walmart? So 21 डेज का पेमेंट साइकिल है वैसे रूटीन में, लेकिन जब आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा तो 90 डेज और $7,500 ये बहुत क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है, फिर 21 डेज की पेमेंट साइकिल रेगुलर हो गई। क्लैरिटी आपको
પેમેન્ટ સાયકલ તમારું પહેલું પેમેન્ટ આવે છે, તમે ઓર્ડર રિસીવ થયો, બટ તમારે જ્યારે એક્સપોર્ટ કરો છો તો 90 દિવસ અને $7,500નું કાં તો બંને ક્રાઇટેરિયા મેચ કરવાના છે. એ મેચ થાય પછી 21 ડેઝની સાયકલમાં રેગ્યુલર પેમેન્ટ આવશે. એ પહેલા 21 ડેઝની સાયકલમાં પેમેન્ટ નહીં આવશે. हाँ. Are you saying आप ऐसा कह रहे हैं कि यदि 90 दिन में सिर्फ $1,000 का भी बिका, हाँ. वो भी 90 दिन के बाद में तो आपको $1,000 हाँ, मिल तो मिल ही जाएगा, तो मिल जाएगा. ऐसा ऐसा है. हाँ, तो ये क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है. और प्रोहिबिटेड $7,500 એટલે ટોટલ છે કે પછી માનો કે પહેલા 90 દિવસમાં $1,500 નો પેમેન્ટ 90 દિવસ છે તો પછી પાછું ઝીરોથી કાઉન્ટ કરો કે 1500 થી ઉપર 7,500 જ્યાં સુધી થાય ત્યાં પછી થઈ જશે. नहीं, 90 डेज નો ક્રાઇટેરિયા મેચ થઈ ગયો એટલે પછી તમને પેમેન્ટ આવે. પછી એ તમારા $7,500 ની અંદર એટલે તો ઇન શોર્ટ પહેલું પેમેન્ટ 90 દિવસે આવશે. नहीं 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 એટલે હાયર એરિયા આપણે 90 डेज ગણવો પડશે. Right, आप right. ऐसा बोल रहे हैं आपको मदद करने के लिए कि यदि 5 दिन में ही आपके $7,500 हो गए तो हाँ. आप 5 दिन में पेमेंट दे दोगे ना? नहीं, 90 दिन के बाद ही मिलेगा. हाँ. 500 हो गए तो भी 90 दिन के बाद ही पेमेंट. ये फर्स्ट पेमेंट के दोनों क्राइटेरिया मैच करना जरूरी है. ફર્સ્ટ ટાઈમ इसके बाद आपको वॉलमार्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो हम वॉलमार्ट एक्सपर्ट टीम को कनेक्ट करने वाले हैं अभी, तो जिसमें कोई भी डिटेलरी क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ पाओगे. थोड़ी देर में ऑनलाइन इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे. और विच आर दी प्रोहिबिटेड आइटम्स, तो मेनली फूड इंजेस्टिबल आइटम्स, आर्मर, ये सारी आइटम्स आप वॉलमार्ट पे सेल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. और सेलर फुलफिल कैसे करेगा अपने ऑर्डर को, तो एक तो है ऑप्शन है सेलर फुलफिल्ड सर्विसेज या वॉलमार्ट फुलफिल्ड सर्विसेज. ये दो में से कोई भी एक. इनिशियली काफी लोग सेलर फुलफिल्ड सर्विसेज से स्टार्ट करते हैं. उनकी जो फास्ट मूविंग आइटम होती है तो उनको जो इसमें कॉन्फिडेंस होता है वो वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विस में बेचते हैं, जिसकी वजह से वो रिटर्न का बाद में इश्यू ना रहे. वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, इस पे डिटेल में नहीं होती है. इज देयर एनी मिनिमम और मैक्सिमम लिस्टिंग क्राइटेरिया, तो नहीं, आप मैक्सिमम कितनी भी लिस्टिंग कर सकते हो. इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ इन्वेंटरी कीपिंग और एट वॉलमार्ट वेयरहाउस, तो ऐसा नहीं है कोई क्राइटेरिया, लेकिन हाँ ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम वहां पर भी लोड रहता है तो वो डिपेंड करेगा. व्हाट आर द फुलफिलमेंट कॉस्ट इफ आई यूज वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज, तो ये डिटेल्स लिंक में प्रोवाइड की गई, आपको लिंक्स प्रोवाइड की जाएगी, उसमें सारी डिटेल है. हाउ कैन आई लिस्ट माई आइटम ऑन वॉलमार्ट, तो हमारी टीम है जो आपको सपोर्ट में ऑनबोर्ड करके देगी और आपको लिस्टिंग गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगा. वैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो. अभी जैसे आप कुछ यहाँ पर मेजोरिटी जो भी आए हैं वो नए हैं, शायद वॉलमार्ट प्रीति प्रोग्राम के बारे में नहीं समझा है कि आप कैसे ये प्रोग्राम गो थ्रू होता है. बट हमारे साथ कुछ ऐसे एमएसएमई आए जो हमारे साथ करीब 3 से 4 साल से जुड़े हुए हैं, तो वो एमएसएमई को मैं इनवाइट करना चाहूँगा 1-on-1 कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी चेंज की आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम और उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया. राइट. તમે આ વોલમાર્ટનો ઓર્ડર અમારી પાસે આવી ગયો, કોઈ કારણસર અમે સપ્લાય નહીં કરી શક્યા તો તો તમને એ લોકો પેનલ્ટી કરે છે, એ તમને આગળ ક્વેરી જે વોલમાર્ટ ટીમ સાથે કનેક્ટ કરો એ લોકો તમને ચાર્જીસ નહીં આપે. તમારા ક્વેશ્ચન નોટ કરીને રાખો. રાઈટ. હમણાં આપણે કનેક્ટ કરીએ છીએ ટીમ સાથે. ओके, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट द एमएसएमई जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था एट द आई थिंक एज ऑफ 16, और उन्होंने वॉलमार्ट में रिसेंटली लास्ट वीक वॉलमार्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से भी उन्होंने
मुलाकात की। उनको पूरे पैन इंडिया में जो 60,000 एमएसएमई हमारे साथ जुड़े उसमें से उनको मौका मिला, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वॉलमार्ट के आए थे यूएसए, तो उनसे मिलने का। सो आई वुड लाइक टू वेलकम काजल मकवाना जी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। Please welcome Kajal ji. Please welcome. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. મારું નામ કાજલ મકવાના છે અને એમ કો ફાઉન્ડર ઓફ હર્ષિવ એન્ટરપ્રાइज. फटाक थैंक यू वॉलमार्ट वृद्धि टीम एंड हर्षल जी इनविटेशन के लिए और यहाँ पे बुलाने के लिए ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कैसे मैंने वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम से अपने बिजनेस को ग्रोथ किया, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया. मैंने अपनी बिजनेस जर्नी 2014 से स्टार्ट किए थे नॉर्मल रिटेलर शॉप से और 2019 में मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था लाइक अमेजोन, मीशो और फ्लिपकार्ट. मैंने वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम 2021 नवंबर से स्टार्ट किया था. बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे बिजनेस ग्रोथ के लिए जो मुझे पता ही नहीं थे कि कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करूं, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करूं, कैसे रिटर्न रिड्यूस करूं. तो जैसे मैंने वॉलमार्ट वृद्धि लर्निंग प्रोग्राम लिया उसमें बहुत सारे ऐसे थे जैसे न्यू स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए, डेड स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए, अपनी मार्केटिंग को कैसे स्किल किया जाए. बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसमें मैंने फेस किया और मैंने अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके गई. उसके बाद वो उसका एक प्रोग्राम था सीबीटी लर्निंग प्रोग्राम. अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सीबीटी लर्निंग प्रोग्राम श्योरली ज्वाइन कीजिए. उसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल वाइज दिखाई जाएगी, कैसे आप उसमें वर्क कर सकते हो. उसमें हर एक डॉक्यूमेंट्स को एक डिटेल वाइज पूरा दिखाया गया है और कैसे आप walmart.com पे ऑनबोर्ड कर सकते हो और अपने बिजनेस को अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हो. सारी चीज़ आपको उसमें नॉलेज मिल जाएगा और अपने बिजनेस को एक अलग ग्रोथ पे लेके जाओगे. थैंक यू. आप कई कई कैटेगरी में हाँ, મારી કેટેગરી છે વુમન વેસ્ટર્ન વેર. ક્લોથિંગ કેટેગરીમાં મેં ડીલ કરું છું. Manufacture Yes. manufacture on your own યસ. અને ત્યાર પછી તમે વોલમાર્ટ થ્રુ ડિસ્પ્લે કરીને આગળ વધ્યા. હા, એટ પ્રેઝન્ટ યોર પ્રેઝન્સ મેન્યુફેક્ચર એકચ્યુઅલી મેં સ્ટાર્ટ કરેલું સાડીથી અને પછી મેં મારી કેટેગરી ડેવલપ કરી વેસ્ટર્ન વેર વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામ પછી અત્યારે પણ તમારું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેટઅપ છે તે સુરતમાં જ હશે સુરતમાં. અને સુરતથી તમે પાન ઇન્ડિયા પણ કરો છો અને એક્સપોર્ટ પણ કરો છો. હા, walmart.com થી મેં મારી એક્સપોર્ટ જર્ની સ્ટાર્ટ કરી છે. Can you share your some certain figures? કંઈક તમારા સેલ્સ રિલેટેડ કંઈક તમે ફિગર શેર કરી શકો કે ભાઈ આ હા. પ્લેટફોર્મ પર આવ્યા પછી શું હા. થયું, ક્યાં પહોંચ્યા? એકચ્યુઅલી જ્યારે મેં પ્રોગ્રામ જોઈન નહીં કરેલો એ ટાઈમે પર ડેના 100 થી 150 પર ડે ઓર્ડર રિસીવ થતા હતા લાઈક મીશો, એમેઝોન, ઓફલાઈન બી. અને વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્રોગ્રામ જોઈન પછી 500 to 600 એવરી ડે ઓર્ડર્સ રિસીવ. Great, great. Thank you. વોલમાર્ટ વૃદ્ધિથી તમારું કેટલા પર્સન્ટેજ વધ્યું સેલ? 3x. 3x. મારું walmart.com પર બી મારું અત્યારે ઓનબોર્ડિંગ ટોટલી થઈ ગયું છે. એમાં બી મારી પ્રોસેસ ચાલે છે. પ્લસ મારા અત્યારે 5 ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ પર મારું છે મીશો, એમેઝોન, ગ્લોરોડ, ફ્લિપકાર્ટ. યા. Walmart.com એ જે ઇન્ટરનેશનલ રજિસ્ટ્રેશન સ્ટાર્ટ કર્યા રિસેન્ટ જ થોડાક મહિના થયા છે. આ પ્રોગ્રામની ઇવેન્ટનો પર્પઝ પણ એ છે કે સીબીટીમાં લોકોને અવેરનેસ આવે ને એ લોકો જોડાય. હા, એકચ્યુઅલી એક્સપોર્ટ તો કરવા ઈચ્છતી જ હતી પણ નોલેજ નહીં હતું કે આપણી પ્રોડક્ટને અધર કન્ટ્રીમાં કઈ રીતે સેલ કરવી, કઈ રીતે એક્સપોર્ટ કરવું. તો એના માટે મને વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ ટીમે બી બહુ હેલ્પ કરી છે અને સીબીટી લર્નિંગથી બી મને બહુ સપોર્ટ મળ્યો છે. કાજલ મેમ, તમે એવું શેર કરો કે આ વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ પ્લેટફોર્મ પર જોઈન થયા તો ટ્રેનિંગ સેશન્સ કેવી રીતે એટેન્ડ કર્યા, કેટલા સમય સુધીના હતા અને તેનો શું મહત્વનો રોલ ભજવ્યો તમારા બિઝનેસમાં? वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम में 2021 एमएचजी हर्षलजी थ्रू मैं स्टार्ट करेलो
અને એમના બધા એક મોડ્યુલ હતા, અલગ અલગ બધા મોડ્યુલ. અને હા, એમના મોડ્યુલ છે તો મોડ્યુલનો એક ટાઈમ પીરિયડ છે કે ટાઈમ પીરિયડમાં તમે એને મોડ્યુલ સેટ કરો, સમજો. ઘણા વાર એવું હોય છે કે ઓન કરીને મૂકી દે લોકો, તો બાજુમાં કામ કરે પણ મોડ્યુલને ઓન કરીને ખાલી મૂકી દે, એવું બી મેં જોયું છે. અને જ્યારે સીબીટી લર્નિંગ પ્રોગ્રામ અમે જોઈન કર્યો ને, એક્ઝેક્ટલી 9 અવર્સ, આખો દિવસ અમે 9 અવર્સ એ પ્રોગ્રામ જોઈન કરેલો. એમાં હરેક ડિટેલ વાઇઝ બતાવવામાં આવેલું હતું. 9 કલાક કન્ટિન્યુઅસ કન્ટિન્યુઅસ સેશન ચાલેલું. એક પ્રકારે ઘણા લોકો એમ કે અરે થોડું લેન્ધી છે, નહીં સમજવું, પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ આ જે એમના મોડ્યુલ છે 31 ડિઝાઇન થયા છે એનું શું મહત્વ છે, ને એ આખા પૂરેપૂરા મોડ્યુલ્સ કે જેમ હર્ષલભાઈએ કહ્યું તેમ જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોડ્યુલમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તે કેટલું સારી રીતે આપણે અંદર શીખી શકીએ તેના પર આપણો બિઝનેસનો ગ્રોથ ડિપેન્ડ કરશે. થેન્ક યુ. લેંગ્વેજ સિલેક્શન આવે? હા, લેંગ્વેજ સિલેક્શન આપેલી છે, હિન્દી, ઇંગ્લિશ. એમાં તમે હિન્દી બી સિલેક્ટ કરી શકો છો અને ઇંગ્લિશ બી કરી શકો છો, તો તમને ઇઝીલી સારી રીતે લર્ન બી થઈ જાય. હર્ષિવ એન્ટરપ્રાઇઝ. હર્ષિવ એન્ટરપ્રાઇઝ. અને મારી અધર્સ બીજી બી ફોર્મ છે. થેન્ક યુ. Thank you so much. Thank you so much, Kavya. Now, જેમ એમની એક જર્ની જોઈ એવી રીતે સિમિલર સેમ આવી રીતે યંગ એન્ડ વ્યુમન એન્ટરપ્રેનર્સ છે. એમને પણ એમની જર્ની બહુ યંગ એજમાં 21ની એજમાં સ્ટાર્ટ કરી દીધેલી, અને એમનો પહેલા રિટેલ સ્ટોર હતો અને ત્યાર પછી એમને ઈ કોમર્સ પર ડાયવર્ટ થયા. લુકિંગ ટુ ધી કોવિડ એરા એમને બિઝનેસને ઈ કોમર્સ પર વધારે ફોકસ કર્યું. આઈ વુડ લાઈક ટુ વેલકમ રવિના મર્ચન્ટજી કે તમે આવીને તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો. પ્લીઝ વેલકમ રવિના. વેલકમ રવિનાજી. એમનું પણ બિઝનેસ છે ને ક્લોથિંગમાં છે અને સાડીઝનું હતું, દુપટ્ટા અને વેસ્ટર્ન વેર. Hi, I'm Ravina Merchant from My Enter Creation. મારી એક નવી બ્રાન્ડ બી આવે છે ક્રિશ્ચિયન કરીને, એન્ડ ઓલ્સો મારી બીજી બધી ફર્મ પણ છે. એન્ડ એઝ હર્ષલજી સેડ, મેં ઓલરેડી રિટેલમાં કર્યું, 5 years મેં વર્ક કર્યું, બટ ધીરે ધીરે ઓનલાઈનનો એટલો બધો સ્કોપ વધી ગયો તો મજા નહીં આવતી હતી રિટેલમાં. સો ઓફકોર્સ વી હેવ ટુ ગ્રો વિથ ટાઈમ. તો અમે વિચાર્યું કે ઓકે, માર્કેટ હવે ઓનલાઈનનું છે તો લેટ્સ ગો ઇન્ટુ ઓનલાઈન. તો મેં સ્ટાર્ટ કર્યું પહેલાં તો મીશો એ બધાથી 2019માં જ. 1 વર્ષ કામ કર્યું, બટ વી વર વેરી ન્યૂ, તો અમને ખબર જ નહીં હતી શું હોય. ઓકે ચલો આ આવ્યું વેચી દો, આ આવ્યું વેચી દો. પણ 1 વર્ષ તો એવું જ બધું ચાલ્યું, કંઈ સમજ નહીં પડે, કોઈ ગાઈડન્સ નહીં હોય, કંઈ જ નહીં હોય. એન્ડ દેન ઇન 2020 અમે હર્ષજીના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા, વોલમાર્ટ રિદ્ધિના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા. એન્ડ ધીરે ધીરે જે આપણે બેઝિક્સ જે લેક કરતા હતા એ બધું બહુ ક્લિયર થયા. માઇન્ડમાં જે અમુક આઈડિયાઝ હતા એ બહુ ક્લિયર થયા. લાઈક પહેલાં અમે કોઈ બી એક વસ્તુ હોય એનું ઓવર પ્રોડક્શન કરી દેતા હતા. ઓકે કે ચલો 1000 નાખી દો, 100 નાખી દો, એવું નહીં હોય. વી હેવ ટુ એક્સપેરિમેન્ટ વિથ થિંગ્સ, અને જે ચાલે એના પર તમે પ્રોડક્શન લાવી શકો. એ બધું અમે ટોટલી થોડું જે બેઝિક્સ હતું એ બધું મેં ક્લિયર કર્યું. પછી અમે સ્ટાર્ટ કર્યું ઇન્ડિયનથી, દેન વી વેન્ટ ઇન ટુ વેસ્ટર્ન. અને વેસ્ટર્નમાં બી અમે સ્ટોપ નહીં થયા, બિકોઝ વી વર ડીલિંગ ઇન વન પર્ટિક્યુલર ફેબ્રિક, દેટ ઇઝ અગર જોર્જેટ છે તો ઓકે જોર્જેટમાં નવી નવી વસ્તુ લાવો, નો. પછી માર્કેટમાં એ ટાઈમે હવે આપણે સ્ટડી કરવું પડે, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ અમને આ પ્રોગ્રામથી ખબર પડી કે માર્કેટમાં શું છે, શું ફાસ્ટ છે, શું ટ્રેન્ડી છે, પહેલાં એ સ્ટડી કરો ને પછી એના પર તમે વર્ક કરો. લાઈક અમે આજથી 2 વર્ષ પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ બહુ જ ફાસ્ટ હતું, પણ અમે લોકો જોર્જેટમાં કરે તો ઓફકોર્સ ડેફિનેટલી તમને ઓર્ડર્સ એટલા રિસીવ નહીં થાય. પછી જેન્સી ક્રાઉડને એક અલગ જ ઓવર સાઇઝનું છે, તો વી હેવ ટુ ડીલ ઇન ધીસ ઓવર સાઇઝ ઓલ્સો. ચેક્સ બહુ વચ્ચે એ નથી તો અમે એનામાં કર્યું. પછી અમે ધીરે ધીરે ફેબ્રિક્સમાં બી બહુ ઇનોવેશન લાવ્યા. પછી અમુક ટોપ્સ હોય તો શર્ટ્સ હોય એ બધામાં બી અમે બહુ અલગ અલગ કેટેગરાઇઝ કર્યું બધું જ. એ બધું રહ્યું. અને ઓફકોર્સ આ એક મેલ માર્કેટ છે, વી ઓલ નો, તો બહુ હાર્ડ છે કોઈ વુમન માટે સર્વાઈવ કરવું, બિકોઝ એ લોકો તો કશે બી ગમે ત્યારે ચાલ્યા જાય. વી હેવ ટુ બી વેરી પર્ટિક્યુલર વિથ એવરીથિંગ. ઓકે આપણે બધે નહીં જઈ શકીએ એકવાર, બટ ઓકે વિથ ગોડ્સ ગ્રેસ અમને બહુ હેલ્પફુલ રહ્યું બધું. આનાથી ખબર પડી કે ઓકે પ્રાઇસ રેન્જ બી એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો કોમ્પિટિશનમાં રહેવા માટે અમે પ્રાઇસ બી બહુ સારી રીતે સેટ કર્યા. એમના નીડ્સ
કેવી રીતે મારી બ્રેન્ડ ફૂલફિલ કરી શકે, શું પ્રોવાઈડ કરી શકે, એ બધું માઇન્ડમાં કર્યું એન્ડ બસ અમે બી આ CBT પ્રોગ્રામ લીધો ડેફિનેટલી. પણ આપણા લોકલ નીડ્સ ને બહારની નીડ્સ બહુ ડિફરન્ટ છે. હવે સ્ટાર્ટિંગ એ બધી વસ્તુ બહાર એ બધું નહીં ચાલે. અહીંયા કલર્સ જે અગર બ્રાઇટ કલર્સ હોય ત્યાં થોડા સટલ કલર્સ ચાલે. વી હેવ ટુ એ બી જોવાનું. ત્યાં એ લોકો બ્લેન્ડ વસ્તુ નથી પહેરતા, ત્યાં બધું પ્યોર ચાલે. દેટ ઇઝ પ્યોર કોટન. એ લોકોને એમ સ્મૂથનેસ લાગવી જોઈએ. તો એ બે અગર તમે એક્સપોર્ટમાં જાઓ છો તો એ ક્રાઇટેરિયા બી તમે માઇન્ડમાં રાખો કે તમે હમણાં જે વેચો છો ને જરૂરી નથી કે ત્યાં વેચો. એ તમે આખું એક્સક્લુઝિવ એક કલેક્શન રાખવું પડે ફોર એક્સપોર્ટ. તો મારી બી જર્ની હજી જસ્ટ સ્ટાર્ટ થઈ છે. આઈ હોપ ગ્રો કરશો તમે વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ સાથે, કારણ કે અમે તો બહુ કર્યું છે લાસ્ટ 4 yearsમાં. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ. તમે પણ કંઈક તમારા ફિગર્સ શેર કરી શકો છો કે પહેલા શું હતું, અત્યારે શું છે? ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ, 2019માં જ્યારે મેં સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે આઈ એમ નોટ ઇવન શ્યોર કે અમે પ્રોફિટમાં હતા બી કે નહીં. આઈ બી વેરી ઓનેસ્ટ. એન્ડ પછી થોડું જે અમે માઇન્ડમાં ક્લિયર રહ્યું, ઓકે ધેન વી સ્ટાર્ટેડ કે ઓકે ડેલી હું ઓર્ડર્સથી વધારે હું ટર્નઓવર પર વાત કરું તો પહેલા વર્ષે અમે 50 lakhs પર પહોંચ્યા. ધીરે ધીરે એવી રીતે થોડું ગ્રો કરીને આજે મારા ફર્મ છે કંપનીનું ટર્નઓવર 3 to 4. બીજી લાસ્ટ પોઈન્ટ, કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો દરેક ધંધામાં ખૂબ જ સ્પર્ધા હોય છે. તમને તમારા બિઝનેસની અંદર લોકલ લેવલની સ્પર્ધા અલગ લાગે છે કે આપણું જે વોલમાર્ટ ઓનલાઈન છે તેમાં અલગ લાગે છે કે બેમાં શું ડિફરન્શિએશન લાગે છે? લોકલ ત્યાં છે જ નહીં એવું પણ છે? શું વોટ આર યોર એક્સપિરિયન્સ? લોકલમાં કેવું છે કે તમે એક વસ્તુ અગર કોઈ વસ્તુ હિટ થઈ જાય છે, આપણી સુરત માર્કેટ તો બી એવરીબડીનું 10 લોકો લાવીને મૂકી દેશે. કોઈ બી પ્રોફિટ થાય નહીં થાય, 10 રૂપિયા ચડાવીને ઓકે અમને ઓર્ડર્સ જોઈએ, કેવી રીતે જોઈએ, રિટર્ન શું છે એ લોકો નહીં જોઈએ, એ લોકોને જસ્ટ ઓર્ડર્સ જોઈએ. લોકલ એ રીતે છે ને ઓનલાઈનમાં તો રહેવાનું છે. વી હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે આ વસ્તુ થવાની છે. કોઈ બી વસ્તુ તમે કરતા હો તો એમાં તો 10 તમને બીજા સેલર્સ મળશે જે વસ્તુમાં. બાકી હજી ઓનલાઈન તમે આ એક્સપોર્ટની વાત કરો CBT, હજી તો મારું જસ્ટ સ્ટાર્ટ થયું છે અને હું એનો એક્સપિરિયન્સ હું તમને ડેફિનેટલી નેક્સ્ટ ટાઈમ શેર કરી શકું બીકોઝ વી હેવ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ યet. પણ બહુ જ સારું કોઓપરેશન રહ્યું છે બધાનું. એટલે મે બી ઇન અ યર આઈ ગેસ બહુ જ ગ્રો થશે એ વસ્તુમાં બી અમારી. હા, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર શેરિંગ વેલ્યુએબલ એક્સપીરિયન્સ. થેન્ક યુ સો મચ. ये मेरे को समझना था कि आपका जैसे प्रोडक्ट्स आप डेवलप करते हैं सर, तो आपका मंथली R&D में कितना जाता है? जैसे न्यू डिजाइन सब आपको स्टॉक बनाना पड़ता है? हमारा डिजाइनिंग रहता है, हम मार्केट को समझते हैं. लाइक अभी हमने जैसे मेंशन किया कि अभी ओवरसाइज की बहुत कीपिंग इन माइंड द नीड्स, तो अभी ओवरसाइज अभी फुल प्रोडक्शन में जा रहा है हमारा फुल. उसमें भी रेटिंग्स अच्छे होने चाहिए. ऐसा नहीं आप किसी में भी कर लो, रेटिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए तो ही वो चीज़ को विजिबिलिटी मिलने वाली है. और आपकी रेटिंग की जो चल रहा है उसको कंपेटिटिव नो ऑफ कोर्स आपके हाँ, अपने को देखना है कि क्या चल रहा है, क्या फास्ट है. अगर अपने वो चीज़ फॉलो करते हैं तो अपने अपनी डिजाइन ला सकते हैं. लाइक ओवर साइज है, उसमें आप अलग अलग चीज़ ला सकते हो, सॉलिड में, प्रिंटेड में, चेक्स में. वो पर्टिकुलर चीज़ मतलब ऐसे नहीं अपने को कॉपी करनी है, वो भी लोग करते हैं बट अपना थोड़ा डिफरेंट है. तो अपने को चेक्स ओवर साइज में भी फुल है. हमारे मैनेजर्स भी हमको बोलते हैं कि ओके आप इस पे वर्क कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिजल्ट्स. तो उस पर हमने नवी नवी चीज़ डेवलप की है फिर, और उस पर रेटिंग्स भी अच्छी. फैब्रिक इज मेन थिंग, फैब्रिक तो अच्छी होनी चाहिए. लाइक अगर आप माइक्रो क्रेप में करो तो आपको इतनी रेटिंग नहीं मिलेगी. हाँ, वो थोड़े वो फैब्रिक का वो रहना चाहिए आपको, QC. बट लेकिन आप जैसे डेवलप करते हैं, Yes. जैसे होता होगा कि 10 प्रोडक्ट डेवलप की, उसमें से एक प्रोडक्ट आपकी हिट या 20 प्रोडक्ट डेवलप की, उसको चढ़ाया. आप अगर एक ओवर साइज में ऐसा नहीं आप एक ही लाओ, उसमें हम लोग 4-5 कलर डिफरेंट लाते हैं. एक कलर हिट कर जाता है, बाकी का शायद कम हिट करे, पर अपने को पता चले ओके ये अभी है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा कर लो. उसका वो 1-2 चीज ऐसी होगी जो कम चलेगी और एक ही टिक मारेगी. वो डेफिनेटली ये मार्केट का रूल है. हर चीज आपकी नहीं होगी, एक ही जो चीज होगी वो एकदम पिक मारेगी. और बाकी ग्रेजुअली रेटिंग्स जैसे इंप्रूव होती है, रिव्यूज इंप्रूव होते हैं, वैसे वो दूसरी प्रोडक्ट्स भी आपकी उसके ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे आपके. ફ્રેન્ડ્સ, आपको આપણે रेटिंग्स बहुत ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખ્યું છે. તો અત્યારે જે પ્રોગ્રામ પૂરો કરી દઈએ પહેલા, ત્યાર પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન ફૂલ ફ્લેજ રાખ્યું છે. તેમાં બંને મેમને પણ આપણે પૂછી શકીશું. તે સિવાય પણ વોલમાર્ટ અંગે જે કંઈ સમજવું હશે તો આપણે પૂછાશે.
ये स्लाइड मूव नहीं हो रही अंकित। ऑनलाइन कनेक्ट अंकित। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मतलब आप इसको बाद में हमारी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। वॉलमार्ट मार्केट प्लेस मतलब सीबीटी में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में आपको इंक्वायरी करनी है या रजिस्टर करना है तो walmartwriddhi.org/marketplace पे आप जाकर अपनी डिटेल्स फिलअप करके कर सकते हो और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। और ये हमारे लर्निंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना जो जरूरी है, उसमें web.walmartwriddhi.org इस पे आप हमारे लर्निंग प्रोग्राम के साथ कनेक्ट होके जुड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन होगा सबके मन में, मतलब इतना सारा करवा रहे हैं और कोई चार्ज है कि नहीं है, क्या फीस है, ऐसा कोई क्वेश्चन किसी के मन में नहीं आया? तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि पहले से ही बता रहा हूँ, CSR एक्टिविटी है ये। वॉलमार्ट इंटरनेशनल के द्वारा इंडिया में MSME की कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए CSR एक्टिविटी है, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक चीज बहुत जरूरी लगेगा, एक इन्वेस्टमेंट लगेगा, टाइम। वो एक इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन ग्रुप्स अगर आप अरेंज करते हो तो हम पर्सनली भी आके कंडक्ट करते हैं ऑफलाइन सेशन में। आप 10 मेंबर्स कर सकते हैं। यस Angit, can we connect online? Zoom. ओके तो मैं हमारी टीम में जो हमारी वॉलमार्ट वृद्धि प्रोजेक्ट की तरफ से जो जुड़े हुए हैं उनका वेलकम करना चाहूँगा। हमारी टीम में से निष्ठा गुप्ता है जो हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में जो भी आपको क्वेरी हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ वॉलमार्ट की तरफ से भी जुड़े हुए हैं दर्शन जी, वेलकम दर्शन जी। और हमारे साथ हमारे ई कॉमर्स के जो एक्सपर्ट है वो भी जुड़े हुए कुणाल मीरा जी। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और हमारे पास यहाँ पर Q&A सेशंस अभी ओपन हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस अभी पूछना चाहो यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। These gentlemen would be able to respond for Indian market also and international market also, correct? Yes. So let's say कि हम international market की बात करते हैं तो यदि हमें 1 piece each यदि हम सूरत से फुलफिल करते हैं या इंडिया से फुलफिल करते हैं US के ऑर्डर्स को, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो तो प्रोबेबली वायबल नहीं होगा कारण कि उसकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। तो फुलफिल बाय जिस तरह से अमेज़न होता है उस तरह से फुलफिलमेंट बाय वॉलमार्ट, क्या आपका क्या स्कीम ऑफ थिंग्स है? Okay. Basically again I'll introduce myself. मेरा नाम दर्शन है। तो जैसे सर दो तरह के शिपमेंट्स होते हैं बेसिकली आप सेंड कर सकते हैं, दैट इज सेलर फुलफिल्ड, दूसरा है वॉलमार्ट फुलफिल्ड। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे ईच एंड एवरी सिंगल ऑर्डर जब आपको प्लेस होता है एंड आप सेलर फुलफिल्ड के थ्रू आप सिंगल ऑर्डर जब डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, हर बार आपको एक 3PL पार्टनर यूज करना पड़ेगा जिससे आपका शिपमेंट कॉस्ट बढ़ जाए। जब आपका शिपमेंट कॉस्ट बेसिकली बढ़ जाएगा एंड दैट पॉइंट ऑफ द टाइम आपको यू विल कीप योर सेलिंग प्राइस हायर देन मार्केट प्राइस व्हिच यू आर कॉम्पीटिंग विद इन वॉलमार्ट, है ना। जब आप वेयरहाउस मॉड्यूल जब आप करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम सिंगल कंसाइनमेंट आप बना के जब आप वेयरहाउस बेचते हैं आपका ईच एंड एवरी सिंगल प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट विल बी लेसर। ठीक है, एंड दैट विल इंश्योर कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है दैट विल आल्सो बी बहुत कम हो जाएगा। और एक बेनिफिट जब आप वेयरहाउस मॉड्यूल में जब आप करते हैं, कोई भी कस्टमर एनीवेयर, आप इंडिया में भी अगर घर में बैठ के Amazon में ऑर्डर कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर रहे हैं, आप ट्राई टू चूज फ्लिपकार्ट अश्योर्ड या Amazon प्राइम, क्योंकि आपको 1-2 दिन में प्रोडक्ट चाहिए एंड यू नीड अ बेटर प्रोडक्ट एंड एन अश्योर्ड प्रोडक्ट। सो वॉलमार्ट में भी जब आप वेयरहाउस मॉड्यूल में करते हैं, वन आप अपने प्रोडक्ट को यू आर प्रोवाइडिंग एट अ बेटर कॉस्ट टू द कस्टमर्स बिकॉज़ यू आर यूजिंग अ वेयरहाउस मॉड्यूल
एंड जहाँ पे आप शिपमेंट कॉस्ट अपनी बचा रहे हैं, गिविंग देम गुड प्राइस. ओके, एंड द अदर वन इज आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट 1-2 दिन में आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है. So choosing a warehouse module, I would consider it's a better option than doing single order in a seller fulfilled model. So yeah, that's the best recommendation which I can advise. I hope I have satisfied your answer. Yes, definitely that is good, and almost many of us understand that warehouse fulfillment is better. But what are the commercial parts of it? What are the charges for warehouse fulfillment? Let's say we talk of US market predominantly. So see, charges when it comes to Walmart, when you are doing seller fulfilled, the only charges which will be deducted is the commission part. जो marketplace में आप deal करते हैं, that's the commission which will be only deducted. And of course जब आप 3PL use करेंगे at that point of the time, आपका shipment and customs जो 3PL charge करता है, those all will be involved. Walmart जब आप warehouse module करते हैं, when you're shipping a bulk consignment, then आपका commission जब आपका sale होगा, जो commission fees है वो commission deduct होता है, ठीक है? Then your product are stored within a Walmart platform, ठीक है? हमारे warehouse में products आपके store रहेंगे. So at this point of the time, आपका storage fees charge, okay, that is month-on-month storage fees, and Walmart will be responsible for delivering your products from the warehouse to the customer anywhere in US. So उसका fulfillment fees एक चीज है जो charge होता है. So that will be shared with you if needed. So you can have a look at that. So these are the 3 fees which will be charged above warehouse module कर रहे हैं, and seller fulfillment, that's one additional, that is only the commission which will be charged. वेयरहाउस मॉड्यूल जो है उसमें जो आप चार्जेस लगाते हैं वो जैसे वैल्यू पे है या क्यूबिक पे है, कैसे? So वो क्यूबिक वॉल्यूम कई बार प्रोडक्ट ऐसा होता है कि क्यूबिक फुट के हिसाब से कैलकुलेशन, क्यूबिक के हिसाब से होता है. यस, क्यूबिक फुट के पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक फुट के हिसाब से चार्ज. हेलो, यार आई हैव अ क्वेश्चन. अगले जो कुछ स्लाइड्स मूव हुए उसमें एक इंसेंटिव का कुछ जिक्र हुआ था, तो कैन यू इलाबोरेट व्हाट इज द एक्चुअली इंसेंटिव टाइप ऑफ थिंग एंड हाउ इट वर्क्स? Incentive 6 to 15% something incentive. That is the commission. Charges. That is the commission what is charged by Walmart. Yes. Okay. So any platform which you're dealing into, हर एक प्लेटफॉर्म का एक कमीशन परसेंटेज होता है, वो हर एक कैटेगरी सेग्रीगेशन के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, सो लेट्स टेक इट एज इफ यू आर डीलिंग इनटू क्लोथिंग कैटेगरी या अपैरल कैटेगरी में आप डील करें, ठीक है? एनीथिंग इनटू अपैरल कैटेगरी, अपैरल में क्लोथिंग, हमारे यहाँ पे इवन ज्वेलरीज, दीज ऑल फॉल अंडर योर अपैरल कैटेगरी. ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ अपैरल कैटेगरी, जस्ट गिव अ सेकंड. आपका लेट्स टेक इट एज आप ज्वेलरी में कर रहे हैं, अपैरल में, अपैरल एंड एक्सेसरीज ज्वेलरी में एनीथिंग लेसर देन $15 5% हम चार्ज करते हैं. $15 से $20 10% इज द कमीशन, एंड $20 से ऊपर दैट इज 15% इज द कमीशन. कमीशन एग्जैक्टली इज जो लेट्स टेक इट एज आप सेल करते हैं $1000 का, $1000 का जो सेल होता है उसके हिसाब से जो 15% कमीशन जो डिडक्ट करते हैं वो प्लेटफॉर्म फीस हम डिडक्ट करते हैं. ये है जो सर मेंशन कर रहे थे, दैट वी कॉल इट एज रेफरल फीस. दूसरी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक्सपोर्ट्स तो एक सेकंड लेवल का काम है, तो फर्स्ट प्राइमरी लेवल जब किसी कोई भी एंटरप्रेन्योर को कुछ छोटी छोटी चीजें उनकी जो है प्रोडक्ट्स वो सेल शुरू करनी है, पैन इंडिया पहले तो शुरू करेंगे, तो उसमें कैसे करेंगे? एक एक इंडिविजुअल आइटम्स भी सेल कर पाएंगे या पूरा प्रोडक्ट लॉट पहले डालना पड़ेगा, कैसे रहता है? कैन यू एक्सप्लेन एंड इलाबोरेट इन दिस एरिया? बिकॉज सारे के सारे हमारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पे आए हैं, दे वुड लाइक टू स्टार्ट, कुछ भी एक स्टेपिंग स्टोन करेंगे, इनिशियली एक स्मॉल मूव रहेगा, ठीक है? So see, I would recommend a seller, जो भी seller onboard कर रहे हैं, जो भी आपके already आप अपने local marketplace में आप already deal कर रहे हो, if even not dealing in any e-commerce marketplace within India, okay, we have our account managers. Account managers की हमारी responsibility ये होती है, आपको onboard करने के बाद even my team जब आपको onboard किया जाता है, so we give them a basic understanding कि हमारे marketplace में क्या चल रहा है. जैसे हर्षल जी ने इनिशियली बताया, apparels and home category is something which is moving better.
होम में बेडशीट्स एक चीज है जो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, एंड देन अपैरल्स में वेस्टर्न वेयर इज समथिंग व्हिच इज मूविंग बिकॉज़ 99% ऑफ द कस्टमर्स आर यूएस कस्टमर्स हु आर डीलिंग इन वेस्टर्न वेयर. सो हमारा रिस्पांसिबिलिटी ये होता है कि कस्टमर्स को समझाना बेसिस ऑन व्हाट दे आर डीलिंग इन. पहले हम समझेंगे वो किस पे बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से बाद हमारे वॉलमार्ट में क्या मार्केट साइज है उसका वी गिव देम एन एक्सप्लेनेशन. एंड ऑल्सो हमारे यहाँ पे भी वाइट स्पेस ये होता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमारे सेलर्स फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हम उनको रिकमेंडेशन देंगे कि हम पूछेंगे सेलर से क्या आप सर ये कर सकते हैं. सो व्हेन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, सो इफ दे उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है व्हिच दे हैव हाई डिमांड, तो देन ऑफ कोर्स उनका अच्छा खासा चलेगा. अगर इफ वी हैव अ रिकमेंडेशन कि हम कह रहे हैं सर आप ये कर पाओ, इफ दे हैव अ कैपेसिटी टू इट, then of course no, already there will be a good sale which will be coming on the later part. Okay, even if they are doing on a single particular product, we will give them a frank idea कि उनका मार्केट में प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसा है. So that is the perspective जो हम अपनी तरफ से देते हैं. सर वन मोर, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, सर्विस सेक्टर में हूँ, बिजनेस से रिलेशन कम है, लेकिन मैं इनकी तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरा अभी जो बिजनेस चल रहा है उसके लिए अभी जो ये सब चीज़ें समझी, इतने 31 वॉल्यूम्स है मॉड्यूल जो सीखने को होगा, सो व्हाट इफ डू आई हैव टू स्टडी फर्स्ट देन ज्वाइन और स्टार्ट विथ सम फ्यू मॉड्यूल्स और डायरेक्टली come on your board? What are the thresholds and something, anything, reservations like that? So there is no threshold. I would recommend कोई भी seller अगर e-commerce में business करना चाहते हैं, there is no experiment. पहले get into it, क्योंकि हमारे पास we are ready to provide you support. Any MSME जो है वहाँ पे हैं, उनके लिए मेरा यही recommendation है, get into the marketplace. जब आप marketplace में घुस जाओगे, it's not that आपको instantly सब कुछ पता चल जाएगा. It's a time consuming process. So we are here to help any MSME उनको समझने के लिए कि मार्केट में एनी मार्केट प्लेस जो चल रहा है, आपको एक मार्केट प्लेस में आप घुस जाओगे, आराम से आपको पता चल जाएगी कि वो मार्केट प्लेस कैसे चलता है. उसके हिसाब से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप कैसे मार्केट प्लेस के थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं. उसके हिसाब से आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. देन आवर रिस्पांसिबिलिटी विल बी हेल्पिंग देम, गाइडिंग देम, हैंड होल्डिंग देम इन एवरी नीड व्हिच दे नीड. ठीक है, जो ये हमारी जब रिस्पांसिबिलिटी हम करने के लिए रेडी हैं, तो आई वुड रेकमेंड व्हाई वेस्ट यहाँ पे बैठ के YouTube में या कोर्सेज करे या उनको समझे. वी आर हियर टू गिव देम एन अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट कैसे चलने वाला है, जो हमारा मार्केट है क्या मूवमेंट है उसका. सो get onboarded and then slowly start understanding things. Why wait to क्या कहते हैं पहले पढ़ ले बाद में ज्वाइन कर. Thank you. Any other questions from floor? मेरा एक सवाल ये है कि B2B जो है वो भी ज्वाइन कर सकता है एज अ ट्रेडर. जैसे मैं अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हूँ, कुछ कंपनीज की मेरे पास एजेंसीज हैं और मैं अगर इसमें जुड़ना चाहता हूँ तो मैं जुड़ सकता हूँ. So agencies as in if you find any लेट्स से सब कोई ब्रांड है उसका मैं यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. oh you're distributor, ठीक है, तो मैं क्या जुड़ सकता हूँ? बिल्कुल सर, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. और इसके लिए कोई आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, अगर ई-कॉमर्स का आपको एक्सपीरियंस है देन ऑफ कोर्स वेल एंड गुड. इंडियन मार्केट प्लेस इज वेरी मच सिमिलर टू एंड वेस्टर्न मार्केट प्लेस. जस्ट आपको प्रोसीजर जानना चाहिए कैसे होता है. जस्ट मार्केट में जो मटेरियल्स जो सेल होते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं. इंडिया में हमारे एथनिक वेयर अच्छे बिकते हैं, यूएस में वेस्टर्न वेयर ज्यादा बिकता है. ठीक है, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बट यू नो हाउ ई-कॉमर्स वर्क्स देन वेल एंड गुड. आपको अगर एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है देन ऑफ कोर्स दैट इज इनफ टू ट्रांसपोर्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएस. रेस्ट मार्केट प्लेस कैसे चलने वाला है तो हम लोग हैं जो आपको मदद कर देंगे. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर एनीवन सो दैट आप ज्वाइन नहीं कर सकते. नहीं, एनीवन एवरीवन इज ओपन टू ज्वाइन वॉलमार्ट. और उस केस में जैसे कोई मेरा कंपनी का मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मुझे उसका कोई कंसर्न लेटर आपको सबमिट करना रहता है? नहीं, व्हेन आपके इंडियन ब्रांड्स हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम या व्हेन दैट इंडियन ब्रांड इज established in US and उनका खुद का ब्रांड रजिस्ट्रेशन है within as a US entity, only then the brand is legally allowed to put a claim on your products. आपको वो infringe कर सकते हैं. infringe मतलब आपके products को, उनके products को आप sell करना वो रोक सकते हैं. Okay, if
that is not there, that brand does not exist in US, ठीक है, and then उनका कोई brand registry नहीं हुआ है, then of course as a distributor I can sell those products in US. There is no restrictions as such. और कुछ ऑर्डर हमें मिल गया है और कोई भी कारण से हम उसको नहीं दे पाए कस्टमर को, तो इसके लिए कोई पेनल्टी करके फीस नहीं चार्ज होगा को हर एक अकाउंट के लिए, हर एक सेलर के लिए एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होता है, so which has to be about 99%, 90%. so वो मैट्रिक्स जब भी आपका इफेक्ट होगा at that point of the time धीरे धीरे आपके अकाउंट को एक हमारी एक सस्पेंशन टीम है जो this will go through every orders which you are dealing into. आप दूसरे कॉमर्स में क्या होता है, आपके अकाउंट बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं and without any intimation. Walmart as of now we are running an activity, आपके अकाउंट सस्पेंड होने से पहले ही आपको बता देते हैं कि सर लेट्स टेक इट एज आपका ऑर्डर्स बहुत कैंसिल हो रहे हैं जो आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो हमें एक प्लान ऑफ एक्शन बना के दीजिए कि व्हाट विल यू डू टू रेजिस्ट दैट इन द फ्यूचर. अगर आपका लेट आप डिस्पैच कर पा रहे हो कि आपकी तरफ से यहाँ पे इंडिया से आप प्रोडक्ट धीरे से कस्टमर्स को पहुंचा रहे हो, सो एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम वी विल आल्सो गिव यू दैट इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो. 3PL पार्टनर आपका भी इफेक्ट कर रहा है जो बहुत लेट से डिलीवर करा रहा है या लेट पिकअप हो रहा है, ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू choosing other 3PL partners. We are associated with other 3PL partners. आपको details दे देंगे, you can contact them, try checking the price. So of course अगर cancellation होगा, late dispatch होगा, account के metrics को affect होगा जो आपके account को suspend करेगा, ठीक है. So this you have to try to change it from your end. So पर fees ऐसे कुछ नहीं जो लगेगा. नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है ज्वेलरी के रिगार्डिंग. ज्वेलरी अगर एक्सपोर्ट होता है तो कस्टम से थ्रू जाता है, तो अगर सिंगल पीस रहेगा तो सर वो इधर से शिप कैसे होगा? कस्टम Major jewelry sellers as of now in my Walmart marketplace they are doing as a seller fulfillment model, क्योंकि ज्वेलरी ऐसा चीज है जो वेयरहाउस में स्टोर नहीं कर सकते, it's always need to order. Okay, so of course any seller who are dealing from India or from UAE, any European countries, they are doing all in seller fulfillment model, ठीक है. So I would recommend as a jewelry part, I would require you to do in a seller fulfillment model. आपको जब भी ऑर्डर आता है within the platform, हम आपके लिए lag time exemption देते हैं जो handling time कहते हैं. आपके ऑर्डर आने के बाद you can take this many amount of days to prepare your products, and उसके बाद जब आपका product ready हो जाएगा, you can ship it to the customer. So we giving you the time extension, क्योंकि जो भी ऑर्डर भी करता है ज्वेलरी they have a tendency to wait, तो वो रुक सकते हैं, ठीक है. So ज्वेलरी के लिए we are giving that time extension and आपको भी so that it is easy for you to manufacture and send it to the customer. Okay, so it doesn't affect your metrics also. और सर कितना हैंडलिंग टाइम मिल जाता है? Handling time depend करता है sir type of product which you have. So maximum handling time which you have seen over here is somewhere around 12 to 15 days, especially for jewelry and handicraft products, ठीक है. So उसके हिसाब से I believe that is sufficient. And if you need more, then there is a special request which you can raise that your account manager will be very helpful. Thank you. Thank you sir. हेलो हसल सर एंड वॉलमार्ट टीम के सारे एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली ऑनबोर्डिंग का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम रहता है कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, GST and KYC document complete. Then after your requirement, I am try Walmart with the program at before 2 months. But your complete document, then after your requirement, it compulsory your website, personal self website. So yeah, and requirement, the compulsory requirement है इस website के लिए. नहीं. So as I told you before, there is no website required as of now. I tell you, ये थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस है. टीम को वेबसाइट क्यों चाहिए होता है? हमारी खुद की ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम होती है. So document as of now I'll go through documents which you require. सर ने ऑलरेडी मेंशन किया था, आपका GST सर्टिफिकेट हो गया, एक पहली चीज जो चाहिए होता है. दूसरा आपका आइदर आपका यूटिलिटी बिल, अ बैंक स्टेटमेंट, एंड देन ईमेल आईडी एंड अ पैन कार्ड डिटेल्स एंड अ मोबाइल नंबर टू गेट यू ऑन बोर्ड, ठीक है. वो इनिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. नाउ जब आपकी कंपनी के वेरिफिकेशन के लिए, लेट्स टेक इट एज उनको कहीं पे प्रॉब्लम हुआ आपके GST के डिटेल्स चेक करने के लिए, दे वांट टू ऑथेंटिकेट. नाउ बिकॉज़ Walmart being a competition for multiple other e-commerce marketplace in US, थोड़ा सा फेक अकाउंट्स जो हैं they get onboarded with them.
उसके लिए टीम क्या किया है, दे हैव आस्क्ड एंड वेबसाइट लिंक टू यू टू एंटर ओवर देयर, जहां पे आप लेट्स टेक इट एज आप Amazon में कर रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम है या सोल्ड बाय नेम आपका जीएसटी का नेम, वहां पे एक वेरिफिकेशन मिल रहा है टीम को कि यस सेलर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और वो जानते हैं कि क्या बिजनेस कर रहे हैं। इसमें एक छोटा सा वेरिफिकेशन है, बट इट्स लिटरली नॉट रिक्वायर्ड कि आप अपनी वेबसाइट डालें। ओके, बट इफ यू हैव इट देन इफ इट्स मच आपका ऑनबोर्डिंग का परसेंटेज बढ़ गया, दैट्स इट। Okay, or need to your turnover, domestic marketplace. नहीं, there is no restriction. Even domestic sellers can join, and even if you are just an exporter or a distributor can join on board. But I may try before 2 months Walmart वर्दी प्रोग्राम डायरेक्ट वेबसाइट इन कनेक्ट, तो उन्होंने आज मेरे से ये क्वेश्चन किया था कि आपका टर्नओवर कितना है और आपकी वेबसाइट है, उसलिए That's a segregation which we give. हम ये segregation just हमारे internal data reference के लिए हम लेते हैं कि आप मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में कितना बिजनेस कर रहे हैं या एक्सपोर्ट में आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारे रेफरेंस के लिए हम ये लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम नितिन है। मेरा सवाल ये है कि फ्लिपकार्ट पे आरटीओ कितना आता है जो कस्टमर तक पहुंचता नहीं, कुरियर रिटर्न जिसको बोलते हैं? जी, रिटर्न टू ओरिजिन। जी जी जी, क्या सवाल था सर, फिर से पूछ सकते हैं फ्लो में? इंडिया में जब हम फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं तो रिटर्न टू ओरिजिन कितने परसेंटेज रहता है? फ्लिपकार्ट में आई बिलीव फ्लिपकार्ट टेकिंग 0 to 1. ओके, देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। लाइक इन वॉलमार्ट यूएस में काम करता है, राइट? अब यूएस में चाइना के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अली एक्सप्रेस है और टेमू वगैरह शायद है। तो अली एक्सप्रेस से जब हम ऑर्डर करते हैं, इवन इंडिया में भी हम कुछ मंगवाते थे पहले जब ओपन था, तो बहुत सस्ते में आ जाता था। तो और जब हम यहाँ से सूरत से भेजेंगे यूएस में, तो हमारी शिपिंग कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाउ डू यू डील विद दैट दिस चाइनीज सप्लायर्स? बिकॉज बहुत सारे वॉलमार्ट में यही है कि चाइना वाले और इवन अमेजोन में भी ज़्यादातर चाइनीज सेलर्स हैं और उनकी शिपिंग कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया। Yes, we get that, sir. We get that. Problem ये है कि see there is no restrictions for any seller to sell on Walmart, है ना? So anyone is liable to sell on Walmart. हम Chinese sellers को ऐसे restrict नहीं कर सकते because it's a US market. I understand that it is an open market, but how Indian seller can compete with Chinese seller who has a leverage from the government for the cheaper shipping cost? See, the only point is one, as I told you, आप warehouse module कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं। इफ दैट इज वन कंसर्न, जहाँ पे आप अपने कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पे व्हेन यू कैन, इफ यू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट, जहाँ पे इफ यू हैव एंड यू आर एबल टू कॉम्पीट द प्राइस एंड आप अपनी शिपिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं, आप वेयरहाउस मॉडल यूज करें। Okay, this is a good. I said that Walmart का शिपिंग पार्टनर है इन इंडिया, जो आप यूज करके आपके शिपिंग कॉस्ट कम करके डिलीवर कर सकते हैं। But unfortunately, we are on a project basis as of now. We haven't started it. Once that is start, I believe you can compete Chinese customers and even Indian government and Walmart India. We all are looking into only that perspective, because even we as an Indian team within CVT, we want to beat जो Chinese team. Okay, this is a very good solution that put the inventory. We got as many projects as we can from our end, ताकि Indian sellers more on board go and it will be easy for them to deliver their products with the US market. बोलिए। मेरा दूसरा सवाल इसी से है कि आप कह रहे हो कि वेयरहाउस में भेज दें माल, बट वी आर न्यू, हमें पता नहीं कि कौन सी प्रोडक्ट चलेगी क्या। अब वो हमने वहाँ पे भेज दिया तो वो तो वन वे है, फिर वहाँ से मंगाने का वापस, ये सब चीजें मतलब स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हैं? It seems impossible. हाँ, मैं समझ गया आप कह रहे हैं। So initial stages में any seller, if you have the capacity to send it warehouse, ठीक है, हम यही recommend करते हैं आपको, जो भी account manager आपको assign किया जाएगा ना, उनका responsibility यही होगा, आपकी product समझे, क्या product आप business में deal करें, ठीक है? Let's say कि आप jewelry में business कर रहे हैं, आपका jewelry का movement कैसे हो, ठीक है? Basis on that हम आपको recommendation कर रहे हैं कि आप warehouse में करिए या warehouse में आप seller fulfillment में इतना कर सकते हैं। And also हम हमारी तरफ से what is the average मार्केट वैल्यू जो वॉलमार्ट में जो चल रहा है, वो रिकमेंडेशन आपको देते हैं, उस प्राइस पॉइंट को आप बीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल योर शिपिंग और ठीक है? उसके हिसाब से वी गिव दैट रिकमेंडेशन। अगर आप वेयरहाउस प्लान कर रहे हैं, वेयरहाउस मॉड्यूल करने का,
ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास 100 प्रोडक्ट है, 100 के 100 प्रोडक्ट आप भेज दीजिए वेयरहाउस में, नहीं, वी विल नॉट डू दैट। वी विल कम टू एन अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स आपके पास क्या अवेलेबल है, कितने प्रोडक्ट्स का, लेट्स टेक इट एज आने वाले 10th को एक वॉलमार्ट का इवेंट है, ठीक है, मंडे को इवेंट है, एंड इवन क्रिसमस का इवेंट है, और हमारे मार्केट में क्या बिकने वाला है, पिछले साल में व्हाट वाज मूविंग ग्रेट विद इन एंटायर यूएस मार्केटप्लेस, उससे पहले का क्या हुआ, ट्रेंड देके वी विल रिकमेंड कि इस साल उसका 2x या 3x इसका मूवमेंट होने वाला है, बेसिस ऑन दैट हमारी क्या कैपेसिटी है, सो वो रिकमेंडेशन देंगे, उसके हिसाब से आप अपनी इतनी इन्वेंटरी 100 में से आप 20 प्रोडक्ट्स आप वेयरहाउस में रख दीजिए जिनका मूवमेंट होता है, एंड नॉट इवन उस 20 प्रोडक्ट की 100 इन्वेंटरी बेच दीजिए, ट्राई विद एटलीस्ट 10 आइटम्स 20 आइटम्स, ठीक है, सो दैट इज हाउ वी वुड रिकमेंड। अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच रसिद जी। मेरा एक इसी से है, आप जब बता रहे थे तब मेरे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें यहाँ से इन्वेंटरी भेजनी पड़ेगी, बट मैं ऐसे भी तो डील कर सकता हूँ ना कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी यूएस में कोई प्रोडक्ट है या सप्लायर है, तो मैं उसके साथ डील करके मैं वहाँ से ड्रॉप शिपिंग टाइप करवा सकता हूँ, ये ऑप्शन अवेलेबल है? ओके, सो ड्रॉप शिपिंग इज अलाउड? Yes, it is allowed. ओके, मल्टी लोकेशन काइंड ऑफ थिंग? Yes, आप कहीं से भी करा सकते हो, anywhere. Okay, so we have a tool जो आप are you dealing in other e-commerce platforms already in India or yes, तो आपको seller center dashboard already मिल जाएगा, similar Walmart का भी marketplace का seller center dashboard आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे अभी इंडिया में क्या है ना कि एक ही पिकअप का रहता है ज्यादातर, कहीं पे है, तो वहाँ पे लाइक मल्टीपल लोकेशन पिकअप होता है क्या आपके यहाँ पे अलग कंट्री में, लाइक जैसे समझो कुछ प्रोडक्ट अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ देन आई कैन शिप इट फ्रॉम वियतनाम, ऐसा कुछ हो सकता है? It always depends on the 3PL you are using. आप 3PL partner जो आप यूज कर रहे हैं, FedEx यूज कर रहे हैं या DHL यूज कर रहे हैं, just try to find out कि वो उस पिन कोड में सर्विसेबल है, so if they are serviceable over there, of course आपका पिकअप हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो फ्लिपकार्ट के लिए था, हाँ, वो ये है कि आरटीओ कितना आता है, रिटर्न टू ओरिजिन कितना होता है, ये क्वेश्चन था मेरा सिर्फ। थैंक यू। One more last question. मैं ये सवाल का जवाब देना ना। Good evening, sir. This is Shrey this side. My question is about the sponsored ad. When a product is listed on Walmart, for example, if I'm listing my product into clothing category, so how would Walmart would charge me if I'm running a sponsored ad on my product? Like for example, जैसे Google में क्या होता है कि if I'm running a Google ad on my website, 31 મોડ્યુલ્સ છે, તો 1 બાય 1 કેવી રીતે આપણે કરી શકાય, તો આમાં તમે ફોર્મ ફિલઅપ કરીને પાછા આપજો એટલે એના પરથી ટોટલ ખબર પડશે કે ભાઈ કેટલા વ્યક્તિઓ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, અને પોસિબલ હશે તો આપણે ચેમ્બર થકી એ આયોજન કરી શકીશું। ચેમ્બરમાં જ આપણી પાસે અલગ અલગ હોલ છે, કેપેબિલિટી પણ છે, તો એ કરી શકાશે। અને ખાલી એક રિક્વેસ્ટ એમાં ચોક્કસ રહેશે કે જેઓ મેમ્બર્સ નથી બન્યા તેઓ પહેલી તકે બની જાય, કારણ કે ચેમ્બર તરફથી અવનવી આવી અનેકો સેશન સેમિનાર્સ ચાલુ જ રહેતા હોય છે। અત્યારે પણ આજ 6:30 વાગે બીજો સેમિનાર અહીંયા છે, એટલે વી આર રનિંગ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ। અને આગળ જેમ કહું છું તેમ ફરીથી આજે કહું છું કે આપણે આપણા બિઝનેસ કરવા માટે શરૂ તો કરી દીધો, સ્કૂલ છૂટી ગઈ અને બિઝનેસમાં આગળ કોઈ કોચિંગ મળતું નથી, તો આવું જ કોઈ પ્લેટફોર્મ આપણને મળતું હોય તો દેટ વુડ બી ઓલવેઝ વેલકમ સ્ટેપ, અને એમાં શીખવું જ જોઈએ। અને CSR એક્ટિવિટીની જો રૂપરેખા આપું તો CSR એક્ટિવિટી એવી હોય છે કે ભાઈ જ્યારે કંપની પોતે નફાનો ટેક્સ ભરી લીધા પછી એવરેજ 3 વર્ષના ટર્નઓવરના 2% રકમ એ લોકોએ CSRમાં વાપરવી પડે। સો ધીસ એન્ટાયર સેશન વિલ બી ટોટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ, અને એ લોકોની ટીમ આટલી ડેલિબરેટલી કામ કરી રહેલી છે, તો વી ઓલ શુડ ટેક ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ ઓફ ધેમ, અને ઓનલાઈન પોર્ટલનો મેક્સિમમ આપણે કેવી રીતે બિઝનેસ કરી શકીએ તેના માટે આપણે આ બેનિફિટ લઈ શકીએ છીએ। થેન્ક યુ। સો નાઉ એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે તેમનો જવાબ આવી જાય પછી આપણે વોટ ઓફ થેન્ક્સ પર જશું। Kunal sir, I would like to repeat my question. The question was कि अगर मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ clothing category में, and if I want to run sponsor ads on my product once listed on Walmart, what would be the basic amount of money that Walmart would charge me? Like for it to be very specific, जैसे गूगल क्या करता है कि कई बार हमारे ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे कीवर्ड बेस्ड डिडक्शन कर देता है कि इफ आई एम गेटिंग अ कीवर्ड दैट CPC would be directly deducted from my Google account. So how does Walmart work? And if I'm running a sponsored ad,
फॉर एग्जांपल मेरा इंडिया से प्रोडक्ट है, मैं यूएस में बेच रहा हूँ, तो would there be any conversion charges for the money which I'm paying towards the Walmart? And at the same time, how does Walmart would give me the ROI once I get back to sales? This was my question. I'll explain you how sponsored ads basically work. So let's take as you have a particular group of category of products जो आप you're dealing into Walmart marketplace. So जब आप उस पे group पे जब आप sponsored ads run करते हो, you run it on a basically on all those products on a specific keywords, ठीक है? And each हर एक product पे आप एक bid value लगाते हो, ठीक है? So based on that bid value, so on those search words जो keyterms आप use करते हैं, based on that keyterms which is getting used, जो आपका चार्जेस जो डिडक्ट होगा, लेट्स टेक इट एज आप कोई 10 प्रोडक्ट के ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स पे आप एड्स रन कर रहे हो, स्पॉन्सर्ड एड्स रन कर रहे हो, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एड, लेट्स टेक इट एज यू हैव गिवन अ प्रोडक्ट एंड वो प्रोडक्ट का सर्च हुआ विद इन दैट वॉलमार्ट मार्केटप्लेस एंड योर प्रोडक्ट्स क्लिक बेसिस पे, आपके हर एक प्रोडक्ट की क्लिक बेसिस पे देयर विल बी चार्जेस डिडक्टेड and there is no limitation of a particular budget कि आप इतना budget ही लगाएं, ठीक है? So based on that budget which you are investing on the product, ठीक है? And उसका जितना click हो रहा है उसके हिसाब से and then orders which you are getting उसका हम ROAS calculate करते हैं, ठीक है? So उसके हिसाब से we give you a recommendation कि कितने product का कितना click हो रहा है, but उसका ROAS क्या convert हो रहा है, है ना? So हाँ. Can I just sorry for the interruption, but my question was sir कि जैसे मेटा हमें बोल रहा है कि पर डे आपका INR $1 होना चाहिए इक्विवेलेंट टू $1 और INR जो भी आज का यूएस जो डॉलर का वैल्यू चल रहा है, मेटा asked us to spend at least that much amount of money when I'm going for my tag. The question was Walmart में भी ऐसा कुछ बेसिक आपका एक स्टैंडर्ड सेट है क्या? No. So we would recommend any seller who is running sponsored ads to start somewhere around $30, and there are sellers who are dealing with $1,000 every month on sponsored ads. Okay, so the only minimum recommendation हम कहते हैं कि $30 से आप शुरू कीजिए. Okay, so that is the recommendation which we give. ठीक है, but we Meta का अलग चलता है, ठीक है? That is completely they work on search keyterms जो होता है उनके हिसाब से. When you're dealing with a marketplace, then the work basis is different. On your keywords which you are entering and the customer who search their keywords, and then जितना product के ऊपर जो आपका sponsored ads run चल रहा है, ठीक है? उसका कितने ऊपर click होता है तो उनका conversion. So that is how the process goes on over here. So there is no minimum amount that you have to enter over here जो आपके sponsored ads run कराने के, ठीक है? There is no maximum limit also. So one last question. जैसे हमें Google keyword planner देता है to search the keywords hitting on the product I want to sell. Is there any specific tool if I want to use for boosting my sales on Walmart so that I can increase my visibility towards the search of my product? And if I don't want to get into paid advertisement, I can use the same keyword to structure my product title in such a way that my visibility increases so that I can draw a lot more of organic sales compared to the sponsored one. So is there any tool which would be helpful for us to get more visibility on Walmart? Yes, there is. So we call it as a assortment growth. हमारे Seller Central में there is an assortment growth panel which provide you an insight basically on your discoverability of your product. वो आपके हर एक चीज टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स जो आपका कीवर्ड्स हैं, and there are multiple. Let's take it as there a product जिसका sleeve length है, there is a shirt जिसका sleeve length है जो आपने mention नहीं किया. हर एक चीज का recommendation within the Seller Central itself एक tool है जो within the seller part of Seller Central ये जो आपको हर एक चीज बताता है कि these are the things which are missing, these are the things which you can add within your product so that your product discoverability can be high. ठीक है? And also product discoverability हमेशा आपका depend होता है basis on the market which is there of your product. So if your market is dire in need, आपके product का बहुत need है Walmart में, and you're the only sole person who is ready to provide your product. So at that point of the time, of course, आपका product जितने भी customers को दिखेंगे उतने orders बढ़ेंगे, उसके हिसाब से आपका movement from let's say it as 5th page पे आप अभी हो, you might move to first page. It will always depends on the movement of your product, कितने orders लगे उसके हिसाब से ठीक है वैसे चलता है. Sir, one last question.
ओके, क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन टाइम शॉर्ट फॉल कर रहा है, लेकिन आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा, विल गेट बैक टू यू, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, सो बेस्ट पॉसिबल वे में आपको आंसर दिया जाएगा. Thank you so much, Darshan, Kunal, and Nishtha for joining us and taking out time for us. Thank you so much. Thank you. So, like आप रिटर्न में जब जाए तो आपके एक फॉर्म फिलअप करने को दिया गया था, अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो वो सबमिट कर लीजिए. और जस्ट वांटेड टू थैंक SGCCI के सभी कमिटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट श्री विजय भाई महवावाला, वाइस प्रेसिडेंट श्री निखिल भाई मद्रासी, सेक्रेटरी श्री नीरव भाई मंदलेवाला, ट्रेजरर श्री मृणाल भाई शुक्ला, ग्लोबल कनेक्ट CEO श्री परेश भाई भट्ट, ग्रुप चेयरमैन श्री किरण भाई थुम्मर, MSME कमेटी चेयरमैन और हमारे जो वॉलमार्ट वृद्धि प्रोग्राम और SGCCI के स्ट्रॉन्ग ब्रिज बने हुए और जिन्होंने ये इवेंट को इतनी अच्छी तरीके से पॉसिबल करवाया, ऐसे हमारे श्री मनीष भाई बजरंग जी. और थैंक यू सो मच सभी का, आप लोग अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए और अपने ये सेशन को इंटरेक्टिव बनाया. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. किरण भाई फॉर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक यू. सभी से रिक्वेस्ट है कि डिनर का अरेंजमेंट किया गया है तो कोई भी मेंबर्स विदाउट डिनर ना जाए. ये वोट ऑफ थैंक्स के बाद अब डिनर के लिए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ અંતર્ગત ઈ-કોમર્સ બિઝનેસના સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ MSMEની શું તકો રહેલી છે તે અંગેના આજના સેમિનારમાં આપણને જેમણે ખૂબ જ સરસ માહિતી પૂરી પાડી, ખૂબ જ સરસ સેશન પૂરું કર્યું તેવા વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ વેસ્ટ ઝોન રિજિયનલ હેડ શ્રી હર્ષલભાઈ ટાણાવાલાજી, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. સાથે આજના આ સેમિનારમાં જેઓ ઓનલાઈન જોડાયા અને ઘણી બધી આપણને માહિતી પૂરી પાડી, આપણા પ્રશ્નોના જેમણે જવાબ આપ્યા તેવા મિસ્ટર દર્શન, મિસ્ટર કુણાલ ગુપ્તા એન્ડ નિષ્ઠા ગુપ્તાજી, આપ સૌનો પણ અમે ચેમ્બરના 12,000 મેમ્બર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. છેલ્લા 2 મહિનાથી આજના આ સેમિનારનું અરેન્જમેન્ટ કરવા માટે જેમણે ખૂબ જ મહેનત કરી છે. આજનો આ સેમિનાર કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવો, કોને ઇન્વાઇટ કરવા, આપણા કાર્યક્રમના મેઇન મુદ્દાઓ શું રાખવા તે વિશેની ખૂબ જ સરસ ઝીણવટભરી જેમણે તૈયારી કરી અને આજના સેમિનારને સફળ બનાવ્યો એવા અમારા ચેમ્બરની MSME કમિટીના ચેરમેન મનીષભાઈ બજરંગજી, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે અમારી FCCCIની MSME કમિટીના મેમ્બર શ્રી દિલીપ ગેહલોતજી, મિતેશભાઈ શાહ તથા અહીં ઉપસ્થિત આપ સૌ મેમ્બર્સનો અમે ખૂબ જ હૃદયથી આવકાર કરીએ છીએ, આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તથા અહીં ખાસ ઉપસ્થિત જે વોલમાર્ટ વૃદ્ધિ સાથે જોડાયેલા જે મેમ્બર અહીં ઉપસ્થિત છે, જેમણે પોતાના અનુભવો અહીં શેર કર્યા, તેમની સક્સેસ સ્ટોરી અહીં શેર કરી, તે બદલ ચેમ્બર વતી અમે આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.